I am Hemant Agarwal, host and coordinator for webinar conducted by www.chshelpforum.com. This website is dedicated to various issues that can be experienced in housing societies. Typically, there are scores of criminal complaints against managing committees in the local magistrate court, Metropolitan Magistrates Court in Mumbai, wherein prosecution is launched by harassed and aggrieved general members of society. Today's speaker will share his knowledge as to which criminal laws become applicable when violent and abusive disputes arise in housing societies. It is not unusual, and such disputes keep rising on routine basis. Example is offenses like intimidation, harassment, breach of trust, nuisance, molestation, abusing, restraining, physical fighting, misappropriation of funds, cheating, demanding money for NOCs, fraudulent entries in society records and registers, and many more. ये सब कब तक चलेगा पता नहीं. बोथ एमसीज एंड जनरल मेंबर्स एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं. दिल से आई सिंसियरली विश कि शांति रखें, पेशेंस रखें, थोड़ा लेट गो करने का एटीट्यूड बनाएं. काफी कुछ आसान हो जाएगा. नाउ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स आई इनवाइट टुडे स्पीकर एडवोकेट प्रदीप सोनावने. Advocate Pradeep Sonavane is from Mumbai and deals in criminal and civil matters. He and his family all are having legal background. He has a rich experience of several years in Mumbai Police Force and has recently retired from Mumbai Police Force. He will share his knowledge on various possibilities and legal remedies for disputes arising in housing societies. On behalf of all the participants, we welcome Advocate Pradeep Sonavane and request him to share his knowledge with all of us. Over to you, Pradeep, sir. Ramesh Babu, who has introduced me to this forum, to Agrawal ji, and thank you for giving me an opportunity to share my experiences on the subject. In fact, I retired as a deputy commissioner of police in the year 2017, and after about 35 years of service in the Mumbai police and Mumbai and other rest of the Maharashtra also. Since then I am also in practice, and मैं आपको खाली I mean is it comfortable with Hindi or English or any? I think sir, we are from Mumbai. Hindi, English, most preferable. Mix. Yeah, okay. First of all, let me Cooperative Maharashtra Cooperative Societies Act 1960 जो है, actually I'll just tell you the police का जो training जो होता है. Normally, everybody knows when we are undergoing the training as a Maharashtra Police Academy. So we have been taught the laws based mainly, that is the Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, Indian Evidence Act, and all other some minor acts also. But then the importance is very less given to the some minor acts. Only thing, because the cases are not very बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस वगैरह नहीं होती है. एंड एज फार एज दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इज कंसर्न, आपको ये पता होगा कि नाउ एक तो हर पुलिस स्टेशन में नाउ ओनली आफ्टर some 2-3 brutal murders in the Mumbai in cooperative societies, जब ये वहाँ पे एक लिव एंड लाइसेंस पे जिनको रखा गया था, एंड आपको अगर पता होगा मे बी 2015 और 16 में एक वन ऑफ द वेरी ब्रूटल मर्डर टुक प्लेस इन द ओखीवाड़ा. तब से फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर हैज
the notification to all the commissionerate and each and every police station. Even all leave and license agreement should be registered. जो भी करते हैं, so it is now it has been it's mandatory to each yeah, leave and license के agreement जो होते हैं वो mandatory, and we have a separate register also, and then accordingly their antecedents are also checked by the police, and then just in order to keep the control over this all, and it's like a preventive measure. अगर आप देखोगे तो पुलिस में बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अगर मैटर्स वगैरह बहुत सारे आते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी इवन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अबाउट द लॉ. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, दैट एवरीबॉडी नोज दैट इट इज managed by the managing committee consisting of the chairman, secretary, and then maybe all managing committee members होती है. Even Maharashtra Cooperative Society Act and the society bylaws, it is run as per the bylaws. मुझे कभी कभी एक ताजुब होता है कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम तो दिया हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट आई ऑलवेज कि कोई भी सोसाइटी में ऐसा कोऑपरेटिव इन मेरा नोबडी कोऑपरेटिव सोसाइटी हम खाली नाम के लिए तो कहते हैं, लेकिन कॉपरेशन तो कहीं होता ही नहीं है. मैनेजिंग कमेटी होती है, वो अपने अपने जो भी इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं वो अपने बस अपने ही रूल चलाते. समटाइम्स दे बिकम वेरी एग्रेसिव, दे गो आउट ऑफ द लॉ. फिर जब वहाँ पे नॉर्मली मेंबर्स को अगर जब तकलीफ होती है, नेचुरली देन दे कम टू द पुलिस. अब मैं आई विल जस्ट गिव एग्जांपल ऑफ माय ओन सोसाइटी. हमारे सोसाइटी 180 मेंबर्स है. इसके पहले तो मैं अभी पहले आई विल स्टार्ट फ्रॉम द व्हेन वी एंटर द सोसाइटी, व्हेन वी हैड परचेज द फ्लैट वे बैक इन around 19 and 2000. Actually, I was also in the force, and my wife is also was practicing as a lawyer, and she was in court. And in the meantime, we had purchased a plot. We entered into agreement for a very no. But then my wife has instructed my sister-in-law and just go to the flat. But you will be surprised to know the managing committee, they have restrained the entry of my sister-in-law. And my wife was she was very much in court. कोर्ट से फोन किया कि भाई तुम मेरी सिस्टर इन लॉ है तो वो आ रही है अंदर, उसको अंदर क्यों नहीं छोड़ते. बट देन शी वाज देन आफ्टर शी गॉट फ्री फ्रॉम द कोर्ट वर्क, स्ट्रेट वे शी केम टू द सोसाइटी में आई. And then first she did not go to the society, she went to the police station first. Because आप एक बार एक फ्लैट ओनर के लिए भी आप अगर एंट्री अगर रोकते हो तो yes, it is a wrongful restraint, and that is I mean it's punishable under 341 IPC. तो then पुलिस वालों ने फिर सबकी परेड करवाई. पुलिस हैव कॉल्ड ऑल द चेयरमैन, सेक्रेटरी, सारे जितने भी कमेटी मेंबर्स को बुलाएगी. व्हाई यू रिस्ट्रेनिंग दिस पीपल, दे आर द लॉफुल ओनर्स ऑफ द फ्लैट, आप कैसे उनको रोक सकते हो. देन वो सारे वो समझ गए. तो दिस वाज द इनफैक्ट तो हमारी जो ये सोसाइटी में एंट्री इस तरह से हुई. आई वाज आल्सो नॉट अवेयर देन. तो मैंने भी फिर अपने वो पुलिस स्टेशन को फोन भी किया. मैंने कहा हाउ कैन दिस पीपल स्टॉप द एंट्री. तो इस तरह से वो शुरुआत हो गई. तो इस तरह से लोग होते हैं कि वो अपने आप को आई डोंट नो, आई मीन चेयरमैन, सेक्रेटरी, दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द बाय लॉज वगैरह. सबके लिए लॉ तो सेम है. दूसरी अभी रिसेंटली ऐसे हमारी सोसाइटी में आई एम जस्ट गिविंग यू द सोसाइटी एग्जांपल्स ऑफ माय सोसाइटी ओनली. आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में कम से कम 180 मेंबर्स है. एंड देन वी हैव सम जिम एरिया और क्लब हाउस भी है. बहुत अच्छा जिम है एरिया में, इज वेरी फेमस. एंड पहले तो हमने किसी लिव एंड लाइसेंस में दिया था, फिर बाद में मैनेजिंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास करके, हमारे एक सोसाइटी के एक मेंबर थी, लेडी मेंबर थी, कि चलो एक आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, चलो हमारी सोसाइटी का ही एक
मेंबर है तो उनको व्हाई नॉट दिस बेनिफिट इज गिवन, तो उनको ही एक सोसाइटी लीव एंड लाइसेंस पे एग्रीमेंट करके सोसाइटी के एक लेडी मेंबर को दे दिया। अब जैसे ही अभी ये जो लॉकडाउन के पीरियड से पहले ही कम से कम वो लेडी ने 7-8 महीने हो गए, शी हैज स्टॉप पेइंग द रेंट टू द सोसाइटी। तो अल्टीमेटली जो रेंट वाज अ वेरी ह्यूज रेंट, इट वाज अबाउट 3.5-4 लाख रुपए मंथली रेंट था। तो वो रेंट बंद करने से सोसाइटी के हम मेंबर ने कहा कि भाई ये तो इतना है, तो हमारे सोसाइटी के ऊपर वो ज्यादा रेंट का स्ट्रेन आ गया। ये सोसाइटी वाले कह रहे थे, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। अल्टीमेटली दैट लेडी, हमने उसको नोटिस दिया, टर्मिनेट किया, बाहर सोसाइटी के बोर्ड लगाया कि बाहर के मेंबर्स को अलाउ नहीं करेंगे, जो जिम के मेंबर्स थे। बट उसने, she did not pay any head and she even did not pay to pay सोसाइटी को पैसे, कम से कम 35-40 लाख का ड्यू हो गया। तो अल्टीमेटली देन देयर वाज वन क्लॉज फॉर द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में देन शी हैज गॉन टू द आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर ने देन सोसाइटी हैज गॉन टू द हाई कोर्ट। अल्टीमेटली फिर हमने हमने क्या किया कि देन वी आर द, हम हमारे सोसाइटी में जैसे हम रहते हैं, हमने सोसाइटी मेंबर्स को इकट्ठा किया, 40-50 मेंबर्स को, और हमने कहा कि भाई दिस इज हमारा जिम, वी सोसाइटी इज द ओनर ऑफ द जिम, और ये ऐसे इतना एक तो भाड़ा ही नहीं दे रही है और ऊपर से दादागिरी कर रही है। तो ये क्या करे? देन आफ्टर इवेक्शन नोटिस विटिस सब देने के बावजूद भी शी वाज रनिंग द जिम। फिर अल्टीमेटली सारे सोसाइटी वालों ने मिलके जिम को लॉक लगा दिया। लॉक लगा दिया तो सोसाइटी इसने क्या किया कि पहले 100 नंबर पे फोन करके पुलिस वालों को बुलाया। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए पुलिस वाले को, आई वाज आल्सो प्रेजेंट। हमने कहा कि भाई तुम इतने 7-8 महीने से तुम भाड़ा नहीं दे रहे, तुम्हारे खिलाफ गया है, बट देन अब तुम ये कर रहे, तो सोसाइटी वाले ने, हम वाला लॉक नहीं खोलेंगे। तो पुलिस वाले बोले नहीं, फिर हम वी विल रजिस्टर अ केस। तो ठीक है, सोसाइटी वाले बोले चलो हम 40-50 लोग सारे आ जाते पुलिस स्टेशन पे, हमारे खिलाफ हमको बंद कर दो। वी आर द ओनर ऑफ द सोसाइटी, इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। या तो 35-40 लाख रुपए भाड़ा है, वो आप भाड़ा भी नहीं दे रहे हो, ऊपर से दादागिरी कर रहे हो। तो अल्टीमेटली दैट मैटर हैड गॉन टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से फिर वो ऑनरेबल जस्टिस गौतम पटेल साहब के पास था। ही हैज गिवन द ऑर्डर इन द फेवर ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने कहा कि बहन तुम पहले जितना पेंडिंग है ड्यूज हो पहले पे कर। एंड अल्टीमेटली शी वाज फोर्स्ड टू पे द 40 लाख रुपीज टू द सोसाइटीज अकाउंट। और फिर बाद में उन्होंने कोर्ट रिसीवर अपॉइंट किया, अगर वो आगे नहीं देती तो आप प्रॉपर्टी सारे ताबे में जाएगी। इस तरह से चालू हुई। बट अल्टीमेटली देन दैट लेडी वाज वेरी मिस्chievous। उसने कई हमारे जो सोसाइटी के मेंबर्स के ऊपर, बीइंग अ लेडी, शी टुक अ फुल अनड्यू एडवांटेज ऑफ बीइंग अ लेडी। हमारे 1-2 मेंबरों के साथ में उसने मॉलेस्टेशन केस भी रजिस्टर किया। दैट वाज एब्सोल्युटली फॉल्स केस, बट देन अल्टीमेटली व्हेन अ लेडी गो टू द पुलिस स्टेशन, तो पुलिस हैज टू रजिस्टर इट। तो उन्होंने कर दिया। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। बट देन ऐसे कई सारे जो चीजें होते हैं कि जैसे पार्किंग के भी काफी सारे इश्यूज होते हैं। बिल्डर आपको पहले तो बस जितने मेंबर्स होते हैं उतने पार्किंग होती नहीं, अगर जितने पार्किंग हो तो भी अगर हर एक के एक मेंबर के पास में 3-3 4-4 गाड़ियां हो तो फिर सोसाइटी इज नॉट बाउंड टू गिव। मिनिमम कम से कम एक मेंबर को एक पार्किंग तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। पार्किंग का इशू इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव इशू। बट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ऑल्दो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अगर अगर होगा, फिर भी जो क्रिमिनल लॉज है, अगर इफ एनी सोसाइटी मेंबर हो या सोसाइटी के एनी इंडिविजुअल सोसाइटी और हु इज द कमिटी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ही they are also bound by all the laws of the land, that is criminal। जैसे ही the moment you किसी को, अगर किसी के साथ में अगर झगड़ा होता है या किसी के साथ में मारामारी होती है, या द मोमेंट आप अपने यू एक्सीड द लिमिट्स एंड अगर फिजिकल पावर या
जहाँ पे होता है, तो देन यू कम अंडर द परव्यू ऑफ द ऑल दिस आईपीसी सेक्शंस। ऐसे नहीं कि सोसाइटी के अंदर भी कभी कभी समझो आप देखिए कई इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से होगा या फैमिली फ्यूड की वजह से हस्बैंड वाइफ मर्डर्स हो जाते हैं, देन पुलिस हैज टू कम टू द सोसाइटी एंड वो तो कई कई बार मारा मारी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कि मतलब जैसे अपनी पार्किंग के इशू है। मेरे एक आई एम एक्चुअली हैंडलिंग वन ऑफ द ऑल्दो आई एम नॉट अ कोऑपरेटिव कोर्ट लॉयर, बट फिर भी एक मेरे पास एक अभी केस आई थी। देयर इज जस्ट सोसाइटी, हमारे नियर बाय सोसाइटी है जहाँ पे इवन इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड सेक्रेटरी बोथ आर लेडीज। और वो उन्होंने इतने ही तंग करके रखा है कि वो पहले धमकी देते कि हम तुम वही करोगे, हमारे से खिलाफ जाओगे तो हम पुलिस स्टेशन में जाके मोलेस्टेशन की केस करेंगे। तो एक एक बेचारा एक मेंबर था, उन्होंने आपके पार्किंग के सोसाइटी पर पार्किंग जो होता है कि जो बिल्डर जो होता है, बिल्डर एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलके जो शुरू शुरू में जो रजिस्टर होती है, एंड देन अलॉटमेंट ऑफ द पार्किंग इज डन बाय द एक एक एग्रीमेंट की करके वो अलॉटमेंट ऑफ पार्किंग हर एक मेंबर्स को होती रहती है। फिर वो इन्होंने क्या किया है कि इनके पास एक गाड़ी थी, तो उसने एक सोसाइटी के मेंबर से एक पार्किंग सेल एग्रीमेंट परचेज कर ली। तो वो उनके नाम पे वो अभी रेगुलराइज कर नहीं रहे। इन इन बिटवीन क्या हुआ कि सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी डिसॉल्व हो गई एंड देन एडमिनिस्ट्रेटर वाज ऑन दैट सोसाइटी। तो एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को एप्लीकेशन किया, एडमिनिस्ट्रेटर ने उनका सारा वो पार्किंग जो थी वो रेगुलराइज कर दिया। एंड अकॉर्डिंगली द डेप्यूटी रजिस्ट्रार हैज इशूड द ऑर्डर्स आल्सो कि इनका रेगुलराइज कर किया जाए। बट फिर बाद में जब वापस मैनेजिंग कमेटी आने के बाद में मैनेजिंग कमेटी ने उनको रेगुलराइज करना भी किया भी नहीं, और बाद में उनका जो पार्किंग चार्जेस है वो भी देना बंद कर दिया। तो अल्टीमेटली नाउ वी हैव गॉन इनटू अपील टू द डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास हमने अभी अपील किया है, दैट मैटर इज स्टिल पेंडिंग। तो ये पार्किंग के भी बहुत सारे इशू होते हैं, और हर एक सोसाइटी में आपस आपस में तो काफी सारे होते ही है। और बाकी मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो दूसरे एक मैं सोसाइटी के बारे में आपको एक बताऊंगा कि अभी हमारे पास में एक सोसाइटी थी। वो सोसाइटी में कुछ मेंबर बोले कि हम देखते हैं कैसे इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन होगा तो मतलब ऐसे एकदम पूरे दादागिरी पे उतर आ गए थे। तो अल्टीमेटली आपको पता है कि फिर पुलिस स्टेशन में जब मैनेजिंग कमेटी ने एप्लीकेशन किया, तो जैसे एक प्रिवेंटिव नोटिस होती है, 149 सीआरपीसी के प्रिवेंटिव नोटिस देते हैं। एंड देन इफ यू आस्क फॉर द पुलिस असिस्टेंट आल्सो टू कंडक्ट द वोटिंग एंड ऑल दैट, तो वो भी पुलिस वाले मतलब देश आपके वोटिंग के टाइम पे फिर पुलिस असिस्टेंट भी भेज देते हैं कि सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस का एक ऐसा है कि जहाँ जहाँ देयर इज अप्रीहेंशन ऑफ, अगर कोई लॉ एंड अगर क्रिएट होती फॉर एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह है, तो दे दे इमीडिएटली टेक कॉग्निजेंस। और आपको खाली बाकी आपको तो सोसाइटी में आपको पता है कि काफी सारे जैसे एनओसी एनओसी करने के लिए या फ्लैट ट्रांसफर करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एक्ट में आपको क्लियर कट लिखा है कि जो आपका जो लिमिट है, आई थिंक 25,000 रुपीज, आई थिंक इज द कंपलसरी जो भी आपका ट्रांसफर चार्जेस होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो फिर वो कभी ज्यादती हो जाती है, लोग फिर ये करते हैं उसको, किसी को कॉर्नर करना, ये करना, ये सारी चीजें होती ही है। बट जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक बार हम ऐसे एक सोसाइटी में मुझे एक कंप्लेंट आई कि भाई आसपास के झोपड़पट्टी वालों ने उनके सोसाइटी का कंपाउंड वॉल ही तोड़ दिया, बिकॉज वो कह रहे थे कि नहीं, आपकी सोसाइटी बनने से पहले हमारा इधर आने जाने का रास्ता था। तो फिर उन्होंने एक दिस ऑल दिस चेयरमैन कमेटी मेंबर दे अप्रोच मी। मैंने कहा भाई ठीक है, लेट मी एप्लीकेशन रिसीव करके फिर मैंने आई पर्सनली विजिटेड द साइट ऑफ द सोसाइटी। देखा हमने, वहाँ पे जाके देखा तो सचमुच वो दीवार वीवार सब तोड़ी थी। तो आई कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द कमिटी मेंबर्स आल्सो, एंड वहाँ के जो लोकल वहाँ के लोगों को मैंने समझाया।
एंड इट वाज अ वेरी कॉर्डियल मीटिंग। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, अभी हम नहीं करेंगे। मैंने कहा एक बार, मैंने कहा अगर दूसरी बार आपने अगर ये दीवार उगर तोड़ी तब हम वी विल रजिस्टर मिसचिफ केस दैट कम्स अंडर द 427 ऑफ द आईपीसी। और वो मिसचिफ केस का क्रिमिनल केस की वजह से फिर वो लोग डर गए, एंड तो फिर उन्होंने वो कभी दीवार को कभी ऐसे हाथ नहीं लगाया। एंड सोसाइटी पीपल, ऐसे कई सारे छोटे मोटे इशू होते हैं, पुलिस स्टेशन के लिए जाते हैं, विच कम्स अंडर द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है कि खाली आपको पुलिस वाले खाली एनसी लिखते हैं, और अगर वहाँ पे अगर आपको लगा कि देर इज एनी अप्रीहेंशन ऑफ एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का है, तो इन दैट केस वो बुला के वार्निंग दे। अदरवाइज फिर क्या होता है कि नॉन कॉग्निजेबल मैटर में है आपको, तो फिर वो यू हैव टू टेक द कॉपी ऑफ दैट नॉन कॉग्निजेबल कंप्लेंट एंड देन यू फाइल, because non-cognizable complaint is the complaint which cannot be inquired into or investigated into without the permission of the court. आपका जब this is the difference between the non-cognizable complaint and cognizable complaint, of course आप जो first information report जो होती है, तो which immediately फिर वो अगर मारामारी होती है या बड़े बड़े थेफ्ट चोरियां होती है, कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी के कंपाउंड में भी किसी की गाड़ी का कोई मिसचिफ करना, कोई टायर को जानबूझ के पंक्चर करना या गाड़ी का नुकसान करना। तो हमारे एक बीच में ऐसे मेरे पास एक आए थे कि, तो उन्होंने फिर वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगाए थे, तो मैंने दे हैव इमीडिएटली स्पॉटेड कि हु इज द पर्सन डूइंग द ऑल दिस मिसचिफ एंड ऑल दैट। तो अकॉर्डिंगली ही वाज देन अप्रीहेंडेड, एंड फिर उसके ऊपर मिसचिफ की जो क्रिमिनल केस वगैरह रजिस्टर करके देन ही वाज उसको कर। ऐसा नहीं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कई सारे बाकी चीजें होती है। मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़े बड़े सोसाइटीज जो होते हैं कि उसमें कई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स भी होते हैं, एज यू से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह के। ऐसा नहीं कि जो चेयरमैन मैनेजिंग कमेटी के लोगों ने भी अगर समझो लोगों के सोसाइटी के फंड्स का अगर इफ दे ट्राई टू मिसयूज इट, या अगर उसमें से अगर पता चल जाता है, then yes, then criminal breach of trust, then cheating and everything all can be registered। और बाकी सारे अगर if there is any डॉक्यूमेंट फोर्जरी, तो फोर्जरी जो सेक्शन है 465, 467, 468, 71, जैसे बाय यूजिंग द फोर्ज डॉक्यूमेंट, और फिर उसमें जो लगता है दैट इज वेरी सीरियस ऑफेंसेस विच आर, मतलब सेशन कमिट केसेस अगर उसमें होते, तो कई सारे बड़े बड़े सोसाइटीज के हमने इवन आई वर्ड इन द इकोनॉमिक ऑफेंसेस बीइंग आल्सो, कि जहाँ बड़े बड़े स्कैम भी होते। और ऐसे सोसाइटी के तो खैर ऐसे इतना बहुत बड़े ऐसा होता तो नहीं है, लोकल पुलिस स्टेशन के वहीं पे करते हैं। बड़े बड़े स्कैम्स आर इन्वेस्टिगेटेड बाय द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट इवन आई वर्क फॉर अबाउट 2 years इन द क्राइम ब्रांच इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। तो ये जो सोसाइटी के जो है, अगर लोग अगर अपने within the purview of agar law, agar if they act, even managing committee also if act in the within the purview of, and if they agar if it is a they create the very cordial environment and cordial relation with each other। कई सारी सोसाइटी में मैंने मैंने देखा कि इवन हमारी सोसाइटी में हमने अभी चालू किया है कि जैसे गणेशोत्सव करते हैं, नवरात्र उत्सव करते हैं, देन वी हैव सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आल्सो इनसाइड, कहीं कोई योगा क्लासेस चलाते हैं। तो देर इज अ नीड दैट कि जो सोसाइटी में कम से कम एक वी कैन जस्ट को रिलेट टू द, जैसे हम पहले इस जॉइंट फैमिली सिस्टम होती थी, नाउ जॉइंट फैमिली सिस्टम ऐसे ऐसे कम होती जा रही है। नाउ एक्चुअली कम से कम सोसाइटी में ऐसे हो जाते हैं कि हमारे नेबर भी कौन रहते हैं वो भी पता नहीं होता है। बट इट इज़ वेरी नेसेसरी नाउ कि एक सोसाइटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैमिली, अगर वो फैमिली की तरह से अगर रहे, तो आई डोंट थिंक इन अ ट्रू सेंस देन इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और बाकी एज आई जो explained you कि जैसे all the criminal laws and all other laws are applicable to the cooperative housing society। cooperative housing society is also not above the law। जिस तरह से बाकी के लिए ये करते हैं, तो these laws are applicable to the all housing। I think I have first then my I think I have
अगर if you anybody has any question तो मुझे आप बता सकते हैं. You can ask the questions if you have anything in mind. Hello. Yes, sir. I Hello. have a question. I have a question. Yes, sir. Hello. Yeah, please go ahead. Hello. Well, sir, you said about the criminal laws and their applicability for any kind of harassment from the cooperative society. लेकिन Yeah. अक्सर जब कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ हैरेसमेंट होता है और वो मेंबर पुलिस के पास जाता है तो पुलिस बोलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास जाओ. So the police usually doesn't cooperate. So this is a big issue because any person, any member, whether it is a lady or it is a man, the person who is harassed, that person will first approach the police because police is available 24/7. Registrar office closes at 6 o'clock in the evening. Yeah. Registrar is not available at that hour of the day if there is usually members meet in the evening or there is any kind of harassment. तो फिर इसके अंदर क्या solution? पुलिस को there should be some training to the police where they should be informed कि ऐसी complaint accept करनी चाहिए. What is your take on this, sir? It is a duty of the, it is a foremost duty of the police to take the cognizance. जिस तरह से अगर harassment है, if somebody is any अगर harassment होती है आपको तो पुलिस का काम ही है. अभी क्या है कि unfortunately मैं आपको अभी apart from this cooperative societies में in between अभी मैं some of my other colleagues, I think if there are some advocate, they will understand the Insolvency and Bankruptcy Act. Now the new that this Insolvency and Bankruptcy Code, it is newly, and all the National Company Law Tribunal, where all these High Court judges retired High Court. तो बीच में हमारा एक one of the insolvency professional, he had approached to the police station. तो उन्होंने कहा कि भाई ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है and I have been appointed as a liquidator and to take charge of the premises and the जो भी documents. तो पुलिस वाले पहले पूछते हैं कि where is the liquidator? मैंने कहा बस I am his authority, this is my authority letter, and under the section 35 of the Insolvency and IBC Act, तो मुझे I have been authorized by the liquidator to take charge of the premises and all that. बोला नहीं तुम तो उसको ही लेके आओ, हम लोग we will not give any assistance and all that. So what I mean to say कि even it is there in my mind also कि जैसे even fortunately in today the all our top Joint Commissioner Law and Order and even Commissioner of Police also, I have worked under them. Even I have planned to approach to this my earlier ये जो senior officers है, and I should explain them कि sir these are the कई सारे लोगों को entertained by the police. छोटी छोटी जो harassment की cases है तो harassment की police has to entertain. मे बी लेडी अगर कोई तकलीफ दे रहे तो कम से कम पुलिस वाले दे कैन सर्टनली, लेकिन क्या करते हैं पुलिस वाले कि नहीं एक एनसी लिख के ले जाओ तुम कोर्ट में जाओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे विल जस्ट राइट वन नॉन कॉग्निजेबल एंड वो आपको बोल देंगे जाओ आप कोर्ट में जाओ. लेकिन क्या होता है कि दिस इज ऑल्सो इफ द पुलिस ऑफिसर लुक्स एट द अगर वो ये थोड़ा सा इफ ही कीप सम सोशल व्यू इन हिज माइंड और एक किसी की तकलीफ दूर करने के लिए अगर वो बुला भी लेता है तो ही समन द अदर पार्टी एंड वॉर्न हिम एंड टेक हिज सिग्नेचर, उतना भी बहुत सारा काफ़ी हो जाता है कि सामने वाला कम से कम दोबारा हिम्मत नहीं करता है. बट इज वेरी अनफॉर्चुनेटली आई कैन से कि और पुलिस स्टेशन में दे आर आई मीन जो भी कंप्लेंट लेने बैठे हुए होते हैं दे आर वेरी जूनियर सब इंस्पेक्टर लेवल होते हैं एंड तो मेरे भी दिमाग में अभी है कि आई शुड अप्रोच टू दिस सीनियर ऑफिसर्स एंड I should have some dialogue with them about the even society, cooperative society matters also, and all others. I have just explained about that insolvency. जो पुलिस वालों को कुछ पता ही नहीं था what is insolvency, what is bankruptcy, they do not know anything.
They may not be even cooperative society के एक्ट का ठीक है, भले पुलिस ऑफिसर वो रहते होंगे कोई सोसाइटी में वगैरह, बट मैं भी खुद 35 साल में नौकरी किया, लेकिन मैंने कभी सोसाइटी के बाजू में कौन रहता है और सोसाइटी में हुआ द कमिटी मेंबर्स आई नेवर टू बॉदर। तो ये इट्स अ रियली मतलब एक लोगों की कम से कम छोटी मोटी तकलीफें होती है जो पुलिस वाले की पुलिस के पास जाते हैं। एंड यू नो व्हेन आई पर्सनली फील कि पुलिस दे शुड अटेंड एंड satisfaction of the complainant. Unfortunately, then yes, certainly if this Mumbai Society Cooperative जो federation जो है, even I can if any official is ready to come with me, I can certainly take the appointment and I can go to the commissioner of police, and certainly we can have the dialogue and we can coordinate between the police, and so that at least cooperative society members, so they will get some sort of relief from. Sure, sir. Sure, sir. I'm an advocate myself. Thank you for your answer and for the initiative that you want to take in approaching your officers and resolving this issue. Thank you so much. यस सर, आई एम ब्रह्म भट्ट। मेरा एक सवाल है आपसे। जी नमस्कार सर, गुड इवनिंग। Sir, in your cooperative matters, many times it goes to the cooperative courts. You know, anything that goes to cooperative courts. your voice is not Hello, वो आवाज नहीं बराबर से आ रही। am I audible, sir? What I am asking, are you able to hear? Yeah. Okay. See, many of the cooperative matters can be solved at the society level, but then when it goes to the court, cooperative courts are really something that you should not be there for the simple reason they don't attend. Let us take a matter of a election. If election matter goes to court the next month itself or something after the restart or whatever it takes 10 years for them to come to here. By the time 2 other terms would have, what is the purpose of having courts? If they are unable to do that, justice delayed is justice denied. That is what is happening in all cooperative courts. Even when it goes to high court, same thing happens. So if you are asking somebody to abide by the law, it becomes almost like a burden to the complainant. He spends money on the lawyers and the lawyers benefit, but the adjournment goes on for years. Now under the lockdown, automatically they are adjourned. Yeah, you are absolutely right. You know, you are quite aware of what is going on in the court. But see, police have their own limitations, that they are strictly abiding the criminal procedure code. Or if you talk about the even registrar appointed by the government, even they will strictly abide by the violation of the cooperative society act and जो अगर bylaws अगर है, तो they will entertain the applications only if there is a violation of the cooperative society act or bylaws. तो अभी तो एक क्या है कि even if you go to the police station also, आप बोलेंगे नहीं तुम एक काम करो, जाओ पहले का application लेके आओ। they'll give you the application, आपका रिसीव कर देंगे, then it will go to the senior, it will be marked to endorse to some other officer. वो ऑफिसर फिर आपको जो फुर्सत में जब भी याद आएगा तो आपको कभी फोन करके बुलाएगा, एंड यू नो तो ग्रेविटी ऑफ द मैटर फिर अल्टीमेटली फिर निकल जाती। इफ देयर इज एनी सीरियस टू बी अटेंडेड, देन ओनली पुलिस अगर इमीडिएटली अटेंड करती है। इफ देयर इज अगर लगता है कि क्रिमिनल ऑफेंस। हाँ जी सर, मेरा नाम सुनीता अग्रवाल है। मैं मीरा रोड ईस्ट से बोल रही हूँ। सर, वैसे तो मैंने हेमंत सर से ये किया तो क्लियर, लेकिन अभी आपसे मैं ज्यादा मतलब बता के क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने 3 साल का री ऑडिट करवाया था, और उस री ऑडिट में ये आया कि जो कन्वेंस सोसाइटी का होता है वो उन्होंने बोला, कमिटी ने 2014 में ही बोल दिया था कि कन्वेंस हो गया है, बट अभी पता चला है री ऑडिट में कि वो कन्वेंस हुआ ही नहीं, सिर्फ बिल्डर से उन्होंने एग्रीमेंट किया। और दूसरा काफी कुछ उसमें बताया कि जैसे फंड्स यूज किए लेकिन उसकी परमिशन नहीं लिया है। तो अभी उन्होंने क्या किया, 83 का इंक्वायरी उस पे ऑर्डर किया डिप्टी रजिस्ट्रार ने।
तो उसके बावजूद भी सर मैं इस रिपोर्ट के आधार पे उनके खिलाफ कंप्लेन वगैरह या आगे के जो प्रोसीजर करना है वो कर सकती हूँ क्या? नहीं, अगर आपके कहने से अगर सोसाइटी ने ऑडिटर निम के देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द फंड एंड वगैरह, इफ इट कम्स, अगर इफ इट कम्स अंडर द क्रिमिनल रिव्यू परव्यू ऑफ द ऑफेंसेस, तो श्योरली देन पुलिस विल, इसमें क्या है कि पुलिस डजंट कम इमीडिएटली नहीं करते, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट होता है, फिर वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के या उसके क्या रिमार्क्स होते हैं, and accordingly sometime what happens, audit report is given to the register of the society, और if registrar also finds it, अगर उनके if he find the observation कि अगर उसमें कोई फंड्स वगैरह मिसऑपरेशन किया, if there is any misappropriation of funds, और तो accordingly then वो criminal section से they right to the even police station also, and accordingly preliminary inquiries are made and criminal cases are registered, but it takes lot of time. उन्होंने Mr. Kapadia, your question, please. Yeah, sir, my Hello. Mr. Kapadia, your question, please. Yes, sir. Sir, I will tell Make it what has short, happened Mr. in my Kapadia. society, and yes, please, certainly. I had made a complaint to the deputy registrar, and to my complaint, the chairman and the secretary replied, all stating falsehood. So I charged them with perjury. Okay. Now, having got frightened of perjury, they went and appointed a lawyer without a properly duly convened committee meeting or permission of the AGM. And they gave that resolution to the registrar. So my contention is, you created a document to deceive the registrar, which according to the Supreme Court judgment, it is construed as forgery. Now, who will charge them with forgery? The registrar or ourselves? That is my question. Just a minute. I'm just out of sight. Just a minute. Yeah. Yeah, please go ahead. Sir, Mr. Kapadia's question is that there is some Okay, you want me to misappropriation repeat? and other. Hold on, I'll do the needful for you, Mr. Kapadia. There is some perjury matter. He is asking whether this perjury matter should be filed by the deputy registrar or by the complainant. Complainant meaning society member for issues relating to society. I think perjury matters can be filed because he is a adjudicating authority. Perjury matter, I mean, there is a suppression of maybe some valid document or something. Perjury matters can be filed only in the court where this court has the jurisdiction. I don't think the perjury complaints can be filed with this cooperative registrar. Okay. We have a question by Aarti madam. Just hold on. Hold on, please. Hold on. Aarti madam, are you there? हेमंत जी मैं 3-4 बार ट्राई कर चुका हूँ. Mr. Namish, please hold on. I'll call in everybody. Just hold on, please. Thank you. Aarti madam, are you there? Aarti madam, आपका क्वेश्चन पूछिए सर को. मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. Go ahead, madam. Good evening. मुझे आपसे I want to understand one thing. जब सोसाइटी में आप फंड आप अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर और आपके पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर रिपोर्ट भी है, तो आपकी सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी वो फंड को कॉन्ट्रैक्टर को ट्रांसफर कर देती है अपनी गैंग के फ्लैट रिपेयर करवा के और बाकियों के फ्लैट को ऐसे ही छोड़ देती है. ऐसी सिचुएशन में आप पुलिस के पास रिपोर्ट किस तरह से करें?
Madam, I don't think that's a structural report वगैरह. It is whether it is related to some police case or something. क्या हुआ, क्या कह रहे प्रदीप जी आप? नहीं, whether it is related to some police case or something structural. तो I could not understand your question. आपने जब आपने जब अपनी टॉक स्टार्ट करी थी ना, तो आपने कहा था CHS is not above the law, right? Yeah. तो हमने CHS के बायलॉज के तहत और MCS एक्ट के तहत सोसाइटी में फंड डिपॉजिट किया फॉर द मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर ऑफ अवर हाउस. तो बायलॉ के तहत अब ये सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ने उसको ग्रॉसली वायलेट किया है और वो फंड के एवज में हमारे फ्लैट को रिपेयर नहीं करके दिया है और हमारे फ्लैट के पिलर्स, कॉलम्स, बीम सब फ्लैट है. तो ऐसी सूरत में अगर हमें पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी है तो हाउ आर वी सपोज टू फाइल द पुलिस कंप्लेंट? ऐसा कोई प्रोविजन है? क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंट बता, पुलिस चाहते हैं ना, तो वहाँ का डिस्पैच डिपार्टमेंट इतनी बदतमीजी करता है वर्षों का कि हम ये कंप्लेन नहीं लेंगे, वो कंप्लेन नहीं लेंगे, हम ये क्यों करें, हम वो क्यों करें. एंड जब हम यहाँ आते हैं तो हमें सोसाइटी में सुनने को मिलता है क्योंकि हमारी तो वर्षों पुलिस स्टेशन में सेटिंग है, इसलिए आपको जो करना है कर लीजिए. और वही वहाँ पे होता है वर्षों पुलिस स्टेशन में कि यहाँ की सेटिंग चलती है क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर्स रहते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी सप्लायर्स रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपनी वेरिफिकेशन के लिए वहाँ सेटिंग पे काम करते रहते हैं. Police doesn't help, and flat is in a very dilapidated condition. So now, what can be done? Can you please guide me, sir? Madam, I think your all complaint has to be lodged to the cooperative registrar है. Pradeep sir, एक second please. Yeah. Aarti madam, we are not going to entertain any complaints or questions if you put in names of any agency or any names of persons. So when you mention police station, please mention police station, not this police station, that police station. We are not going to entertain that. Pradeep sir, please go ahead, sir. Hemant sir, I've got a question. I've got a problem. Mr. Leslie, please hold on. Let Pradeep sir answer Aarti madam का question. Okay. जहाँ cooperative society में there is a violation is done by the managing committee or any other member. तो फर्स्ट जो रजिस्ट्रार हैज द फर्स्ट जुरिडिक्शन, उसके पास कर लेते हैं. अगर इफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, आपको हैरेसमेंट है, मारामारी हो गई, चोरी हो गई या एनी अदर मिसचीफ हो गई which comes under the purview of the criminal laws, so police will certainly take the cognizance. That I can do it as I have earlier also said कि अगर समझो कोई पुलिस स्टेशन से अभी although I am a retired, but मुझे एक I am at least getting 5 to 10 calls. सर हमारा ये कंप्लेंट नहीं ले रहे, ऐसा नहीं वैसा नहीं. But you know that is why I had earlier said कि अगर मुझे if any cooperative housing society federation के office bearers अगर so I can certainly coordinate with the police department and एक अच्छी तरह से we can give the justice to the all the हमारे बॉम्बे में तो काफी सारे सोसाइटी आर वेरी लार्ज इन नंबर मुंबई शहर में, और लोगों की भी मैं भी समझता हूँ कि लोगों के काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. मैं तो जैसे हम पुराने लोग कहते थे कि भाई पुलिस स्टेशन के पायरी के भी आप चढ़िए मत, वहां पे जा ही मत, एंड लिव कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो है उसके तरह से रहेगा तो अच्छा रहेगा. Pradeep bhai, this is Pranav Vankarmi. Yeah, I have a quick question. Sir, I am waiting, sir. Sir, I am waiting. Mr. Namish, please go ahead with your question. One very short question, please. Very short question. सर नमस्कार आशीष जी. मैडम आरती ने जो बताया उस हिसाब से हमारे यहाँ भी हो रहा है कि रिपेयरिंग के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है. किसी को बुलाते नहीं, फंड आता है, फंड का गड़बड़ी होता है. ये साल ये वापस कर रहे हैं दादागिरी मार के कि हम ऐसा ही करेंगे, कोई प्रोसीजर को नहीं करेंगे, हम जो बोलेंगे आप उसमें सिलेक्ट करो. इसके बाद पहले लास्ट टाइम मैं गया था पुलिस स्टेशन इसके लिए, तो पुलिस स्टेशन में मुझसे ये कहा गया कि इसमें हम एफआईआर तो दर्ज नहीं कर सकते, हम कंप्लेंट लेंगे. मैंने बोला आप कंप्लेंट लेंगे, उस पर एक्शन लोगे? तो उन्होंने कहा मैं एक्शन नहीं ले सकते हैं, ये सोसाइटी का मामला है, इंटरनल मामला है आपका, मगर आपको अगर कोई थ्रेटनिंग करता है
या आपको कोई दादागिरी धमकी मारता है या कुछ भी करता है तो आप हमें फोन करिए। मैंने कहा कि हमारे 3 लेडी है वर्किंग, अगर हम कुछ बोलेंगे मोलेस्टिंग का, वो मोलेस्टिंग का ये लगा देती है चार्ज, और उस हिसाब से वो हमें धमकाती है। और धमकाती यानी सारे मेंबर चुप बैठते हैं सिवाय मेरे, मैं तो बोलता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि आप अपना रिकॉर्डिंग ऑन करिए। मगर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मोलेस्टिंग के लिए लेडीज कोऑपरेटिंग सोसाइटी की वहां जाके पुलिस को कंप्लेन करती है, पुलिस इमीडिएट एक्शन लेती है, मगर अगर लड़का, इंसान, मर्द, आदमी, मेंबर, जेंट्स जाके बोलता है इनके बारे में तो ये इंटरनल से जाती है। ये क्यों ऐसा है सर? ये भेदभाव है, बहुत बड़ा भेदभाव है। क्रिमिनल है ये लोग, जो भी काम कर रहे हैं वो क्रिमिनल ही कर रहे हैं सर। और इसमें चोरी भी आ जाती है, इसके अंदर धोखा आता है, इसके अंदर मेंबर्स को गुमराह करना आता है, उसके ऊपर दादागिरी आ जाती है। ये चार तो ये चोरी के ही ऑफेंस है, मगर ये कभी लेते नहीं। क्यों? मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कि वहां पर जाके, आपके लिए वेट कर रहा था। हेमंत जी ने जो रखा, मुझे पुलिस में कंप्लेंट डालनी है। मैं रजिस्ट्रार के पास हो गया, बीएमसी के पास हो गया, सबके पास हो गया हूँ। अब पुलिस लास्ट बचा हुआ है कि ये मीटिंग को स्टॉप करे और ये दादागिरी से पैसा लेने के लिए गुमराह करके न करे। अब आप इसका जवाब मुझे दें, गाइड करें, क्या कर सकते ओके हैं। मिस्टर रमेश, ओके होल्ड ऑन। निमेश जी, आपका जो क्वेश्चन है ना, इट रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग एंड वेरी बिग डिबेट। अब मोलेस्टेशन की कंप्लेंट जो देयर आर सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन, एक सेपरेट एक्ट ही है। तो अभी हमारे हिंदुस्तान के जो कानून है वो बने ही है औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको मैं बता दूं कि आपको बीच में पता है कि कई लेडीज ने 4-4, 5-5 साल के बाद में भी रेप कंप्लेंट डाली। 4-5 साल पहले रेप हुआ है और आज कंप्लेंट करते हैं, फिर भी कंप्लेंट रिकॉर्ड की जाती है। बट उसका आउटकम ये है कि ऐसे एक प्राइमा फेसी, एक सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन है कि आप व्हेन देयर इज अ प्राइमा फेसी देयर इज एन ऑफेंस, यू हैव टू रजिस्टर इट। और अभी बीच में वापस एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि अगर एक अर्नेश कुमार वर्सेस बिहार स्टेट की एक जजमेंट है, वो जजमेंट की मुताबिक आपको एफआईआर लेना ही है। बट फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी आया है कि अगर इफ एनीथिंग मैटर्स, अगर इफ मैटर इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है और थोड़ा सा अगर ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगे कि भाई इसको जरा थोड़ा टाइम लगेगा टू कम टू द कंक्लूजन वेदर इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और नो, तो देन इट सुप्रीम कोर्ट ने खुद 15 दिन दे दिए है कि 15 दिन तुम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो, एंड देन इफ यू इट कम्स टू द कंक्लूजन यस दे कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर रजिस्टर करिए। तो ये ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि आपको आपके खिलाफ मॉलेस्टेशन अगर औरत ने कुछ भी किया भी है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज अ प्राइम ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर और द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर to inquire into detail, make the detail inquiries। सारे आसपास में आप इंक्वायरी करिए, यू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस। अगर कोई सीसीटीवी फुटेज या डिजिटल एविडेंस है, कलेक्ट द एविडेंस अगेंस्ट द पर्सन अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज लॉन्च। अगर कल्प्रिट के खिलाफ आप पहले एविडेंस कलेक्ट करो, एंड देन ओनली इफ यू हैव एविडेंस देन ओनली ही कैन बी अरेस्टेड। आजकल देखिए आप दूसरा ये था कि ये मीटिंग के लिए, ये हमारी सेफ्टी के लिए, हम क्या पुलिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें प्रोटेक्शन दे, क्योंकि ये तीनों लेडी है, वो कुछ भी कर सकती है। मुझे तो धमकी दी है, मैं तेरे को अकेली ठीक कर सकती हूँ, ऐसा बोला है। मेरे पास सारे एविडेंस है, तू देख मैं तेरा क्या करती हूँ। और उसका हस्बैंड और ये सब बाहर गुंडे बुलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या करिए कि आप उसका वो सारे वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग उसका कन्वर्सेशन करिए फॉर योर साइड, सेफ्टी साइड में। और जैसे ही ऐसे को जो एक धमकी वगैरह देती है कि मैं आपके खिलाफ मॉलेस्टेशन केस करूंगी, तो एक रिकॉर्डिंग करके एक पुलिस स्टेशन में इमीडिएटली एक एप्लीकेशन देके यू जस्ट कीप इट ऑन रिकॉर्ड। Okay. Next question is by Leslie Alberta, please. Mr. Leslie, please go ahead. Mr. Leslie, please ask your question. Mr. Leslie, we can't see you. Please adjust your camera. Okay.
members. Now the problem is that 100 years they spent for ratio of fees. And Mr. Leslie, your voice is not audible. Audible. May I go next? I think you type your question on the chat box. I'll read it and I'll put it up to Pradeep sir. Or you can try after 2 minutes after adjusting your network. Okay, Mr. Leslie? Please type your question in the chat box. Hello. Yes. Okay. Mr. Pranav, please go ahead with your question. Thank you so much. Very Mr. short Ahmed. question, please. Absolutely. Pradeep bhai, thank you so much for imparting your knowledge. एक दो क्विक क्वेश्चंस थे. एक तो ये है कि नॉमिनेशन रजिस्टर जो है वो हमारा मिसिंग हो गया है, रीजंस अननोन, और साथ में एक फाइल रहती है वो भी मिसिंग है. तो इन दैट, और मैनेजिंग कमेटी ने पुलिस कंप्लेंट फाइल करने से स्टार्टिंग में तो मना कर दिया था, नहीं कर रहे थे. सो इन दैट केस क्या अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए? थैंक यू. But nomination, I could not understand your question. The nomination register is missing, and so is the file. So nomination register of the society is missing. Yes, of the members. अच्छा, of the और साथ members. में एक हाँ, और साथ में फाइल भी नहीं है. नहीं, So in that case, that's a very serious issue. You have to bring it to the notice of the registrar also. And what you can do in the police station, कि जो मैनेजिंग कमेटी का अगर सोसाइटी इफ इट इज लॉस्ट, मिसिंग मतलब क्योंकि पर्पसली मिस किया हुआ है, या इफ इट इज नॉट ट्रेसेबल और इफ इट इज लॉस्ट, देन दे हैव टू जस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन और एक लॉस्ट की कंप्लेंट करके, सो दैट दे कैन मेक द अनदर, दे हैव टू कीप द रिकॉर्ड. okay, so NC इसमें काम नहीं करेगा, right? Non cognizable, they are saying we'll find non cognizable, but नहीं, जैसे देखिए, आपकी कोई भी समझो ट्रैवलिंग में आपके कोई डॉक्यूमेंट है या पासपोर्ट है, या अगर कहीं गुम जाता है, कहीं रिक्शा में भूल जाता है, तो आई नो व्हाट, आप फिर जाते हो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर लीजिए. दे विल इशू वन लॉस सर्टिफिकेट कि भाई मैं व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग इन रिक्शा, मेरा पासपोर्ट भूल गया या व्हाटएवर इट. तो दे इशू द सर्टिफिकेट. ऑन दैट बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेट, इफ इट इज मोटर ड्राइविंग लाइसेंस आल्सो, तो आपको फिर वो आरटीओ ऑन द बेसिस ऑफ दैट पुलिस सर्टिफिकेट दे इशू द अनदर डुप्लीकेट वन. तो वैसे सोसाइटी ने आपके जाके कंप्लेंट करी है पुलिस स्टेशन में कि अब हमारा रजिस्टर मिसिंग है, मिल नहीं रहा है, रजिस्टर कहीं घूम गया है, या आई डोंट नो, या तो ऐसा तो होता नहीं, सोसाइटी का रिकॉर्ड तो जानबूझ के किया होगा, या maybe some issue also. right. Very serious issue that you have to bring it to the notice of the registrar also, and as well as you give one letter to the police station also. Okay. Thank you so much. Thank you, Mr. Hemant. Welcome. Mr. Menon, please go ahead with your question. Mr. Menon. Hello, sir, am I audible? Yes, please. Yes, sir. Good evening. Sir, actually, the thing is that I am living in a society wherein it is the administrator who is administrating the day-to-day affairs. But this administrator happens to be a member of the society, and he has got 2 members to assist him. And though the deputy registrar has given clearly that they are not supposed to do any redevelopment, they have gone ahead and appointed a development management consultant who is charging a bond to do redevelopment. So I have been protesting against somebody's. Mr. Clemente D'Souza, can you put it off, please? I have been protesting against it. What they have done is that they have gone ahead and taken signature on a 100 rupee stamp paper of all the members, giving the total rights to this development management consultant to lease, hypothecate our property to do self-redevelopment. So the whole thing is so shaky that I'm afraid that tomorrow we may lose the property because such a step is being taken. First of all, there is no committee. It's an administrative committee which is in place. 2, there are no proper
meetings held. 3, all of a sudden this development management consultant has been appointed. But the thing is that our building being 60 years old, including me, there are only 4 members who are staying in the building. The rest of the members have vacated. So the people who are staying outside, they have just followed blindly along with these guys. And since then, it's a herd mentality. The other 3 people in the society also have joined them. So I'm left alone. And I know for sure that it is a well into which they have jumped. So how do I save myself? Because I have approached the collector, I have approached the deputy registrar. Other than giving me notice, deputy registrar tells me you go to cooperative court. But I think this is a irregularity or violation on the part of the society, or what you said that some consultant have been appointed and all that. So I think Hemanji and all other people who are expert in this all cooperative laws and all that, I think if it is related, you can certainly whatever the I'm just telling you the police related to hai na, whichever subject is related, not related to the police station. If you wish to No, keep, sir, actually this is criminal because I have been harassed. I have got emails in which I have been told that I will be demolished before the building is demolished. Okay. So I'm like, sir, इनका matter ऐसा है, Mr. Menon, I have understood. Let me coordinate with Pradeep sir. प्रदीप सर, इनका मैटर ऐसा है कि सोसाइटी में कुछ मेंबर्स हैं, लेकिन 2-3 एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड है. एडमिनिस्ट्रेटर ने सुमोटो अपना रीडेवलपमेंट का प्रोसेस कर लिया है, वहां पे डेवलपमेंट मैनेजर अपॉइंट कर लिया है. डेवलपमेंट मैनेजर कहाँ अपॉइंट किया जाता है? जहाँ पे यूजुअली सेल्फ रीडेवलपमेंट की बातें होती हैं. But he said that even that administrator is also some member of the society. Yes, sir. What is happening is कि if presumably and apprehensively the society is being run what is called as a board of administrator. Okay. It is not an administrator appointed directly by the deputy registrar, but a board of administrator who is doing all these things. Okay. So as you said, in cooperative matters, agreements, contracts, or whatever, if it has to be executed and signed, it has to be done only by a duly elected committee. Now, elected committee means कैसा है कि वो society को elect करना सारे members को. Yeah. Administrator या board of administrator are not elected by the society managing committee. They are there only for specific and limited purposes and limited period. For example, एक administrator का जो कार्यकाल है वो 6 महीने का है. लॉ के हिसाब से बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का कार्यकाल ड्यूरेशन टेन्योर 6 महीने का है. उस समय तक अगर काम नहीं होता है तो अल्टीमेटली आधा काम यूजुअली इलेक्टेड कमिटी करेगी. तो मिस्टर मेनन कैन ऑलवेज गो टू द पावर्स. I think the administrator has a very limited powers. Just to run the affairs of the society. I don't think if they can go to for redevelopment. If he is exceeding the power, then you can certainly approach the registrar and complain against this all board of administrators and all that. Sir, Pradeep sir, इनका मैटर में अगर he is feeling harassed and if the board BOA, board of administrator, is exceeding his power, its power, then can it constitute as breach of trust? नहीं, breach of trust तो नहीं होगा. But harassment के आप you can just register one, give one application to the police station, and अगर वहाँ पे कोई sensible officer है तो he will certainly make an inquiry कि भाई ये क्या चल रहा है. And otherwise they can even police station also they can write to the even registrar also. Does he have, Mr. Menon has an option of filing a private criminal complaint in the MM court? Yeah, everybody has option. अगर पुलिस स्टेशन से कुछ नहीं होती है तो इवन ये 154 से पुलिस हैव पावर टू रजिस्टर द FIR. और अगर समझो नहीं तो अंडर 156(3) जो है वो अंडर 153 से यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द concerned magistrate court and get the complaint registered. But then again,
It takes lot of, it's a very lengthy procedure. Then complaint is being, पहले तो फाइलिंग होती है, फिर आपको then वेरिफिकेशन होता है, then you are called in the witness box. तो आपके काफी मतलब your statement is recorded in oath and all that. And if the court sometime, then court what happens? Court takes the cognizance so moto and then they direct police to आप FIR रजिस्टर कर लीजिए. Otherwise most of the time court क्या करता है? Again it endorse it to the concerned police station under section 202 CRPC, inquiry and report. तो आप पुलिस हो, आप ही इंक्वायरी करो ना, हमको रिपोर्ट दे दो कोर्ट को. तो दैट ऑल्सो, आई मीन आपका पर्पज तो सॉल्व होता ही, बिकॉज देन व्हेन मैजिस्ट्रेट इज डायरेक्टिंग पुलिस टू कंडक्ट द इंक्वायरी एंड टू रिपोर्ट इट, तो पुलिस कैन नॉट, मतलब वो मैजिस्ट्रेट के आदेश से जो रिपोर्ट होता है तो देते ही है, दे गिव द फैक्चुअल रिपोर्ट. Okay, sir. The question of Mr. Leslie Almeida, whom we were not able to hear earlier, he has put it in the chat box. I'll read it out to you, sir. My society is over 100-year-old society. In 2018, on 100 years, they spent over 50 crores without approval of general body. Society has corpus of 50 crores. I made complaint to police. The police took my NMY, say in Marathi. After 10 days, police said he cannot file FIR as he needs sanction from registrar. He sent letter to deputy registrar with complaint. There are many IPC violation. The deputy registrar has not done anything 2 years now. I filed at criminal court under 156(3) to give instruction to police to file FIR, but due to lockdown, only dates. But I think police must have given you clear in writing that there is no criminal case, no offences made out in the criminal offence. They give you reply accordingly. No, they are not given anything. They are not given me anything. They just send it to the deputy register, and the deputy register is sitting tight over it. Okay. अगर पुलिस के पास में अगर एप्लीकेशन देते हो तो then they have to inquire into and give the reply accordingly, whether this falls under whether it is a cognizable offense, whether it is a non-cognizable. Otherwise they can advise you to go to the court of law. ऐसे भी करते हैं, लेकिन hardly एक common people hardly understand कि क्या होता है, और police people Okay, we will take next question of Mr. Kambli, Mr. Apurva Kambli. Hello, am I audible? Mr. Apurva Kambli, please go ahead. Hello, am I audible? Yes, please. Yeah, go ahead. We have actually rented out our flat, so we already pay our non-occupancy charges to them. But our society has started to charge us 4,000 rupees for shifting and unloading and loading and unloading of furniture of the tenant. But this should be illegal. So what should we do? Can you repeat the question? Actually, we have rented out our flat in the society, and we are paying the non-occupancy charges for that. But our society has started charging us rupees 4,000 for shifting of their furniture from the lift. But this should be illegal because we have already paying non-occupancy charges for that. So what should we do for it? I don't think society is charging for, I mean, if you see, अगर आप सोसाइटी के परों से देखोगे तो सोसाइटी की जो लिफ्ट है that is meant for only to not for carrying your big furnitures and all that. अगर वो सोसाइटी के फिर वो लिफ्ट का भी अगर कुछ नुकसान होता है तो then again it's all depend on the even society committee members also. अगर छोटे मोटी चीजें अगर है विचार परमिसिबल तो वो करते हैं. अगर आप बड़े बड़े जैसे like cupboards and all that, if you carry that, तो there is a every likelihood कि लिफ्ट का नुकसान भी हो सकता है, लिफ्ट बंद भी हो सकती है, because which is a common utility. सोसाइटी कैन पे करते हैं ना उसके लिए, और नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस पे एक्स्ट्रा पे करते हैं.
एंड विदाउट लिफ्ट होगा तो विदाउट लिफ्ट एक्चुअली बहुत ऊपर है, 7th फ्लोर पे है, इसलिए हम विदाउट लिफ्ट कोई जाता नहीं है वहाँ पे। या आई अंडरस्टैंड, इवन लेबर्स भी होते हैं कि दे आर ऑलवेज रिलेक्टेंट, अगर साथ वाले भी कोई चीज उठा के ले जाना है तो दे आल्सो हेजिटेट टू टेक ऑल दैट, एंड it is just a understanding. If you have a good understanding between the society and you also understand कि नहीं लिफ्ट में हर एक लिफ्ट की जो कैपेसिटी होती है, certain carrying the weight also, if it goes beyond that then कभी कभी it will cause a big damage also, and that will cause the inconvenience to all members also. Okay, so it will we be have active another for lift question and by. without lift, whether shifting charge is One permissible or moment, not. please. Hold on, please. Hold on. Advocate Fauzdar wanted to ask a question. Are you there, Fatima madam? Yes, sir, I'm there, very much there. Please ask your question. Yeah, Pradeep sir, my question is that between the police and the registrar, the duty of the police is to take the complaint of the common man. The duty of the registrar is to address the issue faced by the members. Okay. But most of the time, the registrars are busy with election duties. They are not present in the office. The police is busy with bandobast. And of course, now with Corona, so they are so tired that it is just impossible to approach them. And the courts are doing virtual things. So common man cases are not heard. Only people who have the facility of internet, technology, only those people can go to the court. So in all this scenario, how do you think the whole system is heading towards which direction? Where are the rights of the common man in all this? Everything is held up because of the Corona. Madam, I think you are also, if you are a practicing lawyer, even I have lots of cases. Even just this last Monday, I happened to go to the family court, and fortunately, I could dispose of one matter which was long pending. 2 साल से वो pending था, and then after, मतलब from 10:40 to 2:30 for 4 hours, I was just moving here and there, and finally I could convince the court, and finally, I got it disposed of that matter. It all depends on the court also. Now courts are working just, I think, from 11 to 2 only, just half session. Many courts even in between there has been, ऐसा नहीं कि court also, yeah, even police, you are others. There's सारे human beings, everybody is getting scared of this, what is this pandemic and all that. So Sir, the pandemic, I'm sorry to interrupt you, but the pandemic है, corona अपनी जगह पे है. The obligation to perform and the obligation to do your duty is binding, whether corona है या नहीं है. They are getting their salary. They are being paid for the whole month. Yeah, you So are how do absolutely you right. address this issue? Fatima, you are absolutely right. Everybody is getting the salary and all that, but the main focus जो है कि even they are also human being, they have also suffered. Even so many doctors have died, so many policemen they have also died. वो ऐसा नहीं कि मतलब पुलिस स्टेशन बंद करके तो बैठे, ऐसा तो नहीं है. Of course they attend जो भी gravity of the offenses जो है तो they certainly attend to. If you are talking about the registrar, मैं एक मैटर के लिए मैं 3 बार गया हूँ, and what I found that he has been attending the meeting by the corporation minister, revenue minister. इनका सब चलता है. You are about you are talking absolutely is right. It is an helpless situation, sir. You can say act of God. We have to wait. We have to wait. Fatima madam, I hope you have Yes, sir. understood. It is an Yes, act sir. of God. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much for addressing my both questions. Thank you. Somebody else wanted to ask some question? Mr. Suri, please go ahead. Suri, please. गुड इवनिंग Ask सर. a सर question. हाँ, मैसेज ये था कि भाई अगर कोई आपको आपकी प्रॉपर्टी का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आप नहीं ले पाते हैं क्योंकि आपका नेबर वहाँ पे फर्नीचर रख देता है, मोटर बाइक रख देता है, और जब आप जाते हैं फिर भी वो मतलब बड़ी रिलक्टेंटली वहाँ से हटाता है, फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ रख देता है, तो ये मिस्चीवियस में लिया जाए या इसके लिए कैसे उसको टैकल किया जाए? मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी शॉप है,
उसका वॉशरूम जो है साथ में ही है, मतलब एक दुकान आगे करके है। तो वो क्या करता है, जो दुकान नंबर 1 वाला है वो अपना वहाँ पे फर्नीचर, अपना फ्लावर पॉट्स और सब वहाँ पे जो है, तो मेरे को एक्सेस नहीं मिलता है वहाँ पे जाने के लिए। जब मैं जाता हूँ तो मेरे को कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट खड़ा रहना पड़ता है, जबकि वो हटाता है। तो व्हाट शुड आई डू? मेरे पास जो खरीदा हुआ है बकायदा मार्किंग है, मैं उस चीज का प्रॉपर्टी टैक्स पिछले इतने सालों से भर रहा हूँ। तो ये मिसचिफ में डालना चाहिए, हैरेसमेंट में डालना चाहिए मैटर, पुलिस स्टेशन में क्या मैटर से डालना चाहिए? नहीं, आप तो पहले तो यू कैन मेक हिम अंडरस्टैंड कि भाई हमें आने जाने की तकलीफ होती है, आप अपनी चीजें जरा बाजू में सर वो क्या है, जो हमारे बाजू वाला है वो दिल्ली से है, और दिल्ली में क्या ये सब तांतेबाजी चलती रहती है। बॉम्बे का कुछ सिस्टम अलग है, तो वो दिल्ली वाले जल्दी समझते नहीं है जब तक कि हाई हैंडेडनेस होवे नहीं। तो आपका तो सी यू हैव राइट ऑफ एक्सेस, बट अगर मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि यू हैव राइट ऑफ एक्सेस, यू आर द राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड इफ यू आर प्रिवेंटेड अगर आपको नहीं करना है तो बस एक पुलिस स्टेशन में सिंपली कहा है कि एक एप्लीकेशन कर दीजिए और बुलाएंगे उसको, समझा देंगे। अब मैं एज आई हैड, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है कि हम लोग सी आई वाज इन पुलिस सर्विस, आई ज्वाइन पुलिस सर्विस इन वे बैक इन 1984। तो हम लोग एक एक दिमाग में एक ऐसे वी हैड सम सॉर्ट ऑफ एक एटीट्यूड कि चलो यार आज थोड़ा सा एक लोगों की मदद करते। वी नो दैट कि हम किसी को कोई भी देयर आर सो मेनी कंप्लेंट ऐसी होती है कि वन पुलिस कैन नॉट एंटरटेन द कंप्लेंट्स, बट फिर भी एज एक सोशल कॉज, अगर समझो अभी देखो फॉर एग्जांपल, मैं आई जस्ट टेल यू फॉर एग्जांपल, अभी समझो एक आधी औरत रात को एक एक दो दो बच्चे लेके समझो 11-12 बजे रात को पुलिस स्टेशन है कि सर मेरे को मेरा आदमी दारू पी के आया है और मुझे बहुत मारा है, मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। अभी आप उसको बोलोगे कि तुम जाओ कोर्ट में जाओ, हमको कुछ पावर नहीं है, बट यू नो जस्ट एज अ कीपिंग सम सोशल व्यू इन द माइंड, देन हम एक कांस्टेबल भेज देते उसके साथ में, वो आदमी को लाते। अगर वो समझो बहुत ही पिया हुआ है तो इट इज ऑब्वियस, वो औरत भी बेचारी डरती है, बच्चे रोते रहते हैं, देन व्हाट वी डू, तो आदमी को ताबे में लेके पुलिस में आके रात भर बिठा देते। औरत को बोलते भाई जाओ आप बच्चे को लेके आप सो जाओ। सुबह जब उसकी जब दारू बीरी उतरती है, एक 2-4 थप्पड़ मार के उसको एक 151 सीआरपी से एक प्रोविजन है कि 24 आवर पुलिस कैन डिटेन, 151 कर सकते। तो अंडर दैट प्रोविजन हम उसको 24 घंटा बंद करके उसको छोड़ देते हैं वार्निंग देके। सर पुलिस उसमें अगर भी मैं पूछता हूँ कि ये मिसचिफ में डाला जावे, अनऑथराइज्ड रिस्ट्रिक्शन में डाला जावे, क्या किया जावे इसमें? एप्लीकेशन क्या दी जावे? अब राइट ऑफ एक्सेस अगर डाले तो आपका वो रास्ता रोक रहा है, या तो मिसशिप में डाल दीजिए, कोई बात नहीं। इट इज जस्ट तो थोड़ा सा पुलिस वाला थोड़ा समझेगा तो वो कर देगा। दैट इज इन दिल्ली और यू आर टॉकिंग अबाउट इन मुंबई में? इन मुंबई सर। मुंबई में? हाँ तो लास्ट टाइम तो क्या जो इंस्पेक्टर था उसने इसको मतलब बुलाया था, उसने रातों रात ही सब चीजें वहां से हटाई और फिर मेरे को 3-4 साल प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ तो बस पुलिस के क्या है कि बहुत सारे होते हैं कि पुलिस के एक्शन ही लोगों को आजकल क्या होता है कि पुलिस की भाषा से ही समझते, बाकी और किसी समझते नहीं। बच्चे जैसे नहीं है, आपको बराबर। 2-4 साल तकलीफ नहीं हुआ और एक बार जाइए, गिवन एप्लीकेशन सीनियर से मिलिए। कभी कभी क्या हो जाता है कि नीचे का ऑफिसर क्या होता है कि वो जो एक तो ड्यूटी 12-12 घंटा ड्यूटी करते रहते, और गांधी मिला होता है उसको, तो कम से कम बुला लेता है। Okay, Mr. Kapadia, you have any question? Yeah. Always Hello. Kapadia. Yeah. Hello. I'm audible. Yes, please, Mr. Kapadia. please go Yeah. My society has not been installing CCTV cameras, though our society is of 124 members. And recently there were some tree cutting incidents and all. And societies as usual, which I have seen from the talk today, normally managing committee, they are not working in accordance with the law. अभी कैमरा नहीं डाल रहे क्योंकि उनको 50 चीज इलीगल करनी है, ये करना है, वो करना है, तो कैन द पुलिस जुडिशन बी इन्वोक? नहीं, आई डोंट थिंक पुलिस कैन। आप खाली व्हाई डोंट यू रेज द इशू विद द, जब वो आपकी एजीएम वगैरह होती है तब आप इशू रेज करिए। एजीएम में तो मारामारी करते, तो हमारे तो एजीएम में हमको तो खासकर मुझे तो पुलिस बुलानी पड़ती है, हर बार पुलिस आ जाती है एजीएम में, हर बार पुलिस का वैन आती है। एक बगल तो डीसीपी आके दिए थे, जाके दिए थे पुलिस प्रोटेक्शन। Mr. Hemant, and
May I just interrupt in this one, please? I think there was one rule right now, just a few days back, that police had made this compulsory to install CCTVs in society premises, also looking Yes. a little outside. That was there. I have a circular of 2013 in one of my societies where my office is there. वहां पे वो बॉम्ब ब्लास्ट अंधेरी एरिया बोल के पुलिस ने वहां पे कैमरा पे सीसीटीवी लगाया हमारी सोसाइटी में कंपलसरी, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? Or it is, I think this people are adamant because it is a need of the hour कि सीसीटीवी अगर लगना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि आजकल इवन हमारे सोसाइटी में भी ऐसे होता था कि कोई ऐसे एक मिसचिफ करता था, किसी के टायर खराब करो, किसी के टायर डैमेज करो, but ultimately it was detected only due to the CCTV footage, and we could apprehend. Sir, here I would like to add, in case there is any robbery in the society, I have noticed that when you go to the police station, they first ask you for the CCTV footage. If you don't have CCTV footage, they tell you first install the CCTV and then come and give the complaint. Also, we are not accepting the complaint. You are absolutely right. Now, I'll tell you one thing. Now, this digital evidence has been even, it is now accepted even every court of law. और जो जितने भी सीसीटीवी फुटेज है आपका डिजिटल एविडेंस है वो इट इज ऑल ओवर एक्सेप्टेड नाउ. अगर ये इट इज कंपल्सरी, आई डोंट नो, बट व्हाई इट शुड, व्हाई इट कैनॉट बी मेक कंपल्सरी हर सोसाइटी में. मुझे भी लगता है कि करना चाहिए. Pradeep sir, I would like to interrupt here for knowledge of everybody. Mumbai Commissioner of Police, signed by DCP, Deputy Commissioner of Police, they have issued an order on effective from 8th March 2021, in which they have, I'll just read out this particular wordings. This order shall come into force from 11th March till further notice. And he says here, therefore I, Chaitanya S., Deputy Commissioner of Police Operations and Executive Magistrate, in the exercise of powers conferred upon me under section 144 CRPC, do hereby order that all private establishment ऊपर दिया हुआ है, which covers housing societies, trusts, NGOs, and clubs, etc. So now he has made it. He has issued an order that CCTV हर जगह install होना है, for information of everybody. Yeah, this is the one I was talking about. Thank you so much, Mr. Raymond. The letter circular. Sir, can you share the circular, please? 1 minute. Separate 1 minute. 1 minute. Hemanji, this is a letter circular, I suppose. Yes, this circular is issued in. It is dated 8th March 2021. Okay, what's about recording? How many days recording should be there? How many days recording should be there? Because in my society, 30 days. Madam, this is only regarding a order कि आपको CCTV इंस्टॉल करना है. वो सोसाइटी या प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट जो भी है उसकी क्षमता के ऊपर है कि वो एक दिन वाला करता है. जैसे आपने 100 कैमरा लगाए हैं तो आपका एक दिन में भर जाएगा. अगर आपने 2 कैमरा लगाए तो शायद 1 महीना जाएगा. तो द पुलिस और द गवर्नमेंट अथॉरिटी इज नॉट गोइंग टू टेल यू कि ये स्पेसिफिकेशन का लगाना है, इतना ड्यूरेशन का लगाना है, इसको पावर बैकअप देना है, उसको ये देना. ऑल दोस टेक्निकलिटीज द अथॉरिटीज डू नॉट डिस्क्राइब इन देयर. क्योंकि सर मैंने मांगा ना, नेक्स्ट डे ही मांगा बिल्कुल कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए एक ही दिन का, तो वो बोलते कि नहीं उसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं. ठीक है, ओके. जो पर्टिकुलर इशू किया है, आई डोंट थिंक डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर, इट इज नॉर्मली इशूड बाय द डीसीपी operations of the on behalf of the commissioner of police. Whatever you have read it now, it must have been issued by the DCP operations on behalf of the commissioner of police. They issue it, but on behalf of CP, yes, on behalf of the CP they have issued it. Call it, because ultimately cooperative society ko there has to be direction from the registrar itself
फ्रॉम द कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट कि आप कंपलसरी करिए, लगा ही लीजिए. I don't think police CP office has mentioned it as law and prohibitory order. So Yes. this prohibitory order is vested with the CP or the police department, special powers. Yeah, I don't know, but whether it is specifically mentioned in the cooperative society is also included in that circular. It is. I'll just read out. It will take only 30 seconds. Banks, ATMs, financial institutions, jewelry shops, hotels, guest houses, restaurants, bar and pubs, wine and beer shops, and importantly, residential towers, which again comes under CHS only, housing societies, office buildings. 12 में लिखा हुआ है न्यू एंड अपकमिंग रेसिडेंशियल टावर ऑफिस बिल्डिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी और भी लिस्ट है. Then again, tomorrow issue will come. If anything in very serious offense takes place in the society also, then why there is no CCTV footage and all that? But ultimately, again, वो तो वैसे अगर नहीं है तो नहीं है, क्यों नहीं है तब वो तो later on it will be inquired into. I don't know how. I mean, like going forward to this issue, few questions arise up from members. वो ये कहते हैं कि common open spaces है, जैसे कि मेरे दरवाजे के बाहर जो पैसेज एरिया है, that is classified as common open spaces. अब common open spaces में फ्लैट 101 ने एक CCTV लगाया जो पूरा पैसेज को कवर करता है, वो फ्लैट 108 तक को कवर करता है. अब बाकी 108 वाला बोलता है तुमने मेरा प्राइवेसी इन्फ्रिंज किया, तुमने मेरे प्राइवेसी को किया हुआ है. अब मूल प्रश्न ही आता है कॉमन ओपन पैसेजेस में लगाया हुआ है, एक आदमी की प्राइवेसी कॉमन ओपन पैसेजेस में कैसे इस्टेब्लिश करें? ये कैसा टाइप का कंप्लेंट आ जाता है? प्राइवेसी वो हो सकता है कि भाई चलो आपकी 4 दीवारी के अंदर आपने एक चुपचाप एक गपचुप कैमरा लगा दिया, स्पाई कैमरा लगा दिया वगैरह वगैरह, तो वो प्राइवेसी में आता है. लेकिन अगर आप बिल्डिंग के नीचे लगा रहे हो, मैं वॉकिंग कर रहा हूँ मेरे गर्लफ्रेंड के साथ में, मेरे फादर के साथ में, मेरी मदर सिस्टर के साथ में, उसमें मेरा प्राइवेसी कैसे इन्फ्रिंज हो सकता है? तो इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए प्रदीप सर. अब ये क्या है कि ये आपको तो क्या है कि हमारे जो इसमें तो क्या है कि ये still there are no such laws की infringement of the private policy और private rights वगैरह. ऐसे हमारे इधर जैसे अपन बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, तो एनीबडी कैन बी, बाहर जो चलता है वो यहाँ पे भी तो एप्लीकेबल तो है ही नहीं. लेकिन अभी another question is by Mr. Patil. परवेज जी के सोसाइटी में व्हाई द पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि सीसीटीवी. आई जस्ट टेल यू फॉर एक शॉर्ट एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ. Yes, sir. I was the ACP Andheri division. One gentleman. Hello, am I audible? Yes, I'll request all the participants to mute themselves. There is a static and recording also is not happening. The speaker also finds it difficult to hear and to speak. So please keep yourself muted. Thank you, sir. Pradeep sir, please go ahead. I'll just give a very short example. एक 2 एग्जांपल देके मैं I'll finish my talk. अभी एक रिसेंटली क्या हुआ, एक थाना में एक सोसाइटी में लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पे एक यंग गर्ल एक फ्लैट दिया था लिव एंड लाइसेंस में. अब वो उसने क्या किया कि आउट ऑफ ह्यूमैनिटी दैट लाइसेंसर ना डिपॉजिट दिया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, भाड़ा नहीं दिया. एंड दैट फिर वो लड़की को कुछ बोले तो फिर वो बेचारे डर जावे, साला कभी पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करे. तो 3 महीने हो गए, जब न भाड़ा नहीं कुछ नहीं है, नथिंग, यू नो. शी वाज यूजिंग ऑल द इलेक्ट्रिसिटी, शी वाज नॉट पेइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर कुछ भी नहीं दे रही. उसको नोटिस देके हो गया, सब कुछ हो गया. बट अल्टीमेटली व्हाट आई हैड सजेस्टेड कि आप ऑल्दो देखिए अभी हर सोसाइटी में समझो एक 50 फ्लैट है. कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब देयर हैज टू बी कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स इन द सोसाइटी. तो उन्होंने अल्टीमेटली दिस फैक्ट्स वर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर कमिटी मेंबर्स आल्सो. आज समझो आज मैं अपना फ्लैट भाड़े से दे रहा हूँ, कल आपका भी हो सकता है. दैट प्रॉब्लम में बी टू एनीबडी एल्स इन द एनी मेंबर टू द सोसाइटी.
तो अल्टीमेटली व्हाट आई हैड सजेस्टेड कि जितने भी आप लेडीज मेंबर है, लेडीज मेंबर को इकट्ठा करिए एंड उनको फ्रंट में डाल के उसको कहिए कि भाई आपको देना है ना, तो हम यहाँ पे लॉक लगा रहे थे। तो अल्टीमेटली चेयरमैन, सेक्रेटरी, दे वर वेरी कोऑपरेटिव, दे ऑल गैदर्ड, 4-5 लेडीज वगैरह गैदर की, वो लड़की को समझाया बेटा तो अगर नहीं होता है तो हम आपकी लॉक, तुम अपना बंदोबस्त करो। बट दिस शुड बी द कॉपरेशन फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अल्टीमेटली वो लड़की शी हैज एग्रीड, उसने लिख के दिया एंड वेरी कॉर्डियली उसने अपना खाली करके निकल गई। अब हम सोचे कि नहीं वो हमारा प्रॉब्लम थोड़ी, हो तुम्हारा है भाई, तुम पैसा ले रहे हो। बट अल्टीमेटली इवन सोसाइटीज इज आल्सो चार्जिंग द नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। तो एक दैट काइंड ऑफ कॉपरेशन हैज टू बी देयर। आई विल टेल यू एग्जांपल कि इवन दिस प्रॉब्लम इतने मतलब इसकी प्रॉब्लम्स की इतनी ग्रेविटी है। Just for example, I'll tell you one thing. There is one MLA society. Can you imagine member of legislative assembly? सारे MLA है, एक MLA ने एक उनका फ्लैट अपना भाड़े पे दे दिया एंड द पर्सन हु वाज वो कर रहे थे अपने आप को कि मैं ही इज कनेक्टेड टू सम कोई एक मीडिया, ही पोस्ट टू बी मीडिया पर्सन, मैं मीडिया वाला हूँ, ओके। एंड हिज वाइफ बोल रही थी कि वो मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की मैं सेक्रेटरी या अध्यक्ष हूँ। तो बेचारा पहले वो MLA बेचारा कि 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल से ही हैज नॉट पेड द रेंट ऑल्सो। तो 1-2 बार उन्होंने कोशिश की कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप रेंट नहीं दे रहे हो तो खाली करो। और बोले नहीं हम तो फिर मैं मीडिया वाला हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी का हूँ, ऐसे हम खाली भी नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, आपको जो करने करो, हम सारा मीडिया में इकट्ठा कर लूंगा। तो बेचारे वो MLA साहब भी डर गए, अब क्या किया जाए। तो वो तो फिर पता है कि यू हैव द वेरी, अच्छा एक बार MLA ने पुलिस कंप्लेंट कर ली कि भाई हमने ऐसे ऐसे दिया था। पुलिस बोले नहीं हमारा काम ही नहीं है हमारा काम नहीं, हम कैसे, पुलिस हैज नो पावर टू डिस्पोजेस एनीवन और पुट समबडी इन पोजीशन। पुलिस को कोई ऐसी पावर नहीं है। तो बोले भाई इट्स योर कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट है, आप देख लो कैसे करने का। तो अल्टीमेटली देखिए क्या होता है कि फिर वो अल्टीमेटली दे हैव कम टू मी। मैंने कहा भाई आपके पास कोई लेडीज वीडीज आप ये कर लो। तो उन्होंने क्या किया अल्टीमेटली और सजेशन ही लेके उन्होंने 8-10 लेडीज इकट्ठा कर दिया और जैसे ही वो औरत बाहर उतरी थी अपने लॉक से करके अंदर घुस गए और ऐसे ऐसे फिर आ गए। फिर उन्होंने फिर पुलिस स्टेशन को फोन किया, पुलिस वाले आ गए। तो MLA ने बोला भाई मैंने तो आपको एप्लीकेशन दिया था, तो आपने तो बोला कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, अभी आप ये लेडीज के कंप्लेंट करने से आप क्यों आ गए। तो दैट मैटर हैज काफी बोले नहीं आप उनको ऐसा नहीं कर सकते, यू कैनॉट। तो बोला भाई मेरा फ्लैट है, मैं बैठा हूँ, चाहे तो तुम मेरे को अटक करो, यू कैन अरेस्ट मी। तो अल्टीमेटली दैट मैटर हैज गॉन अप टू द, काफी वो चीफ मिनिस्टर तक मैटर गया था। बट अल्टीमेटली जो उन्होंने एक बार वो पोजीशन में ले लिया, तो अल्टीमेटली जो पुलिस वाला था, जो दोज हु आर ट्राइंग टू डिस्पोजेस द MLA एंड हु वाज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द MLA, वो ऑफिसर को अल्टीमेटली जब CM को पता चला तो CM ने सारे सीनियर ऑफिसर भेजे। अल्टीमेटली दैट जब ऑलरेडी MLA अपने फ्लैट में बैठे, पोजीशन में बैठे, यू कैन नॉट डिस्पोज हिम। उनको क्या पावर है, जाओ उनको बोलो कोर्ट में जाओ। एंड अल्टीमेटली देन वो फ्लैट उनको अपने ताबे में मिल गया एंड दे हैड टू मूव आउट ऑफ द हाउस। एंड ऐसे काफी सारे बहुत सारे एग्रावेटेड प्रॉब्लम है न्यू लाइसेंस के लिए भी। तो ये गहन विषय। इवन पुलिस हैव वेरी लिमिटेड पावर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी मैटर्स। Sir, there is another question by Mr. Abhay Patil. Mr. Abhay Patil, if you are there, please ask your question. Hello. Mr. Patil, please go ahead and ask your question. Hello. Am I audible, sir? Yes, please go ahead. Hello. You are audible, madam. हमारे Patil, madam, please go Hello, ahead. sir.
Am I audible? Yes, please. या सो हम लोग 7th फ्लोर पे रहते हैं हमारे सोसाइटी में, एंड हमारे नीचे जो लोअर फ्लोर पे है वो हमेशा लीकेज की प्रॉब्लम करता है. द प्रॉब्लम इज फ्रॉम आउटसाइड द लेकिन सोसाइटी हमारी साइड से ही है और सोसाइटी हमसे ही पैसा हमेशा मांगती रहती है या हमें डराती धमकाती रहती है. पानी भी बंद किया था लास्ट टाइम. सो मैं क्या कर सकती हूँ इस मैटर में? हेलो. Yes, madam. Sir is going to answer you. Please mute yourself. बट वो शी इज आल्सो, जो भी ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, शी इज आल्सो मेंबर और सॉरी, मैं मेंबर हूँ, सोसाइटी के मेंबर हूँ, और जो नीचे जो फ्लोर रहते हैं वो हमेशा ये करते रहते हैं, हमसे कंप्लेंट करते रहते हैं और एवरी 2-3 मंथ्स में ये लीकेज का इश्यू निकालते रहते हैं, जबकि वो आउटसाइड ये रहता है और आउटसाइड पाइप का लीकेज है विच इज सपोज टू बी डन बाय सोसाइटी इटसेल्फ. यहाँ पे बायलॉज में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, बिकॉज मैं अकेले हूँ. 2-3 महीने में ये होता है, इशू मेरे को होता है. सिंस आफ्टर माय हस्बैंड्स डेथ दे आर स्टार्टिंग हरेसिंग मी दिस वे. दैट इज ट्रू. अगर वो इंटरनल लीकेज है, अगर आपके फ्लैट के ऊपर से या ऊपर के बाथरूम से होता है तो नेचुरली यू हैव टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ दैट फ्लैट ओनर कि भाई आपके ये बाथरूम से लीकेज हो रहा है. तो इंटरनल वो दोनों फ्लैट वाले आपस में देखेंगे. अगर बाहर सोसाइटी की, अगर बाहर की तरफ से, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी. ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी. हेलो पहले सर, तो आप कमिटी में यू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द कमिटी मेंबर्स कि भाई मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है, आप जाके जरा देख लीजिए. सर वो कमेटी मेंबर नहीं है, वो जो पर्सन है वो कमेटी मेंबर है, और वो जो ये लाया हुआ है वो जो प्लम्बर, वो भी उन्हीं का है और वो भी मेरी तरफ ही पॉइंट आउट करता रहता है. उसी प्लम्बर से ही एक्चुअली मेन प्रॉब्लम इज कि उसी प्लम्बर से ही वो सब करवाते रहते हैं ये लीकेज का इशू. आई थिंक आई एम सस्पेक्टिंग उसी प्लम्बर से करवाते हैं बिकॉज दे वांटेड टू हरास मी. मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि वो प्लम्बर के थ्रू से, आई कैन अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. कभी कभी ये प्लम्बर जो होते हैं ना, वो कमिटी वालों के इशारे पे ही वो करते हैं. दे कैन डू, दे गो टू एनी एक्सटेंट, मिसशिप करते हैं वो. मिसशिप करके इसका पानी बंद करना या ये करना लीकेज का वगैरह. तो ये सारी चीजें होती रहती. यू कैन एक एप्लीकेशन एक पुलिस स्टेशन में दे दीजिए कि एट द बिहेस्ट ऑफ द ये प्लम्बर के जरिए मुझे ये सब सारे हरेसमेंट और तकलीफ दी जा रही है मेरे लीकेज में, एंड इट इज बिकम अनबेरेबल टू इन माय फ्लैट आल्सो. ओके, थैंक यू सर. पाटिल मैडम, आपका जो लीकेज है वो कहाँ से हो रहा है? आपके घर से हो रहा है कि बाहर के दीवार से हो रहा है? हमारे ही घर से हो रहा है, और वो जो बाहर का जो है वो लास्ट टाइम उन्होंने क्या बोला, जो 5th फ्लोर पे है वो उनके पास लीकेज हो रहा है, वो हमारे 7th फ्लोर से ही हो रहा है और मेरा पानी बंद किया था. ठीक है, आप एक एप्लीकेशन दे दो सोसाइटी के सेक्रेटरी को. सर मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मैंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार तक गई हूँ. मेरी बात पूरी सुन लीजिए मैडम. आप एक अर्जी दे दो सोसाइटी के सेक्रेटरी को कि लीकेज काफी समय से जारी हो रहा है. आप एक स्ट्रक्चरल ऑडिटर को अपॉइंट करो या लाइसेंस्ड प्लम्बर को अपॉइंट करो इस लीकेज को डिटरमाइन करने के लिए. जो रिपोर्ट आएगा तो उस रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि लीकेज आपके फ्लैट से हो रहा है, बाहर से हो रहा है, पानी की ऊपर के टंकी से हो रहा है, सीवेज लाइन से हो रहा है, पानी की पाइपलाइन से हो रहा है. जो भी कुछ है उस रिपोर्ट में आएगा. जब तक वो रिपोर्ट नहीं आता है आप उस पर कोई भी कार्रवाई मत करिए. ना तो सोसाइटी कर सकता है, ना तो नीचे वाला फ्लैट कर सकता है. अब जहां तक आपके हैरासमेंट वगैरह की बात है, आप मेरे ओपिनियन से आप डेफिनेटली पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो कि भाई ये लोग मेरे को डरा धमका रहे हैं, ये मुझे हैरास भी कर रहे हैं, मेरे साथ में मस्ती कर रहे हैं वगैरह वगैरह. अगर पुलिस FIR नहीं दर्ज करती है तो एक प्लेन पेपर पे प्रॉपर रिटर्न कंप्लीट लगा के आप पुलिस को हैंड ओवर करो. अपना काम आप इतना निपटाइए, फिर बाकी का जब होगा तब का तब देखेंगे. ओके, एनीबॉडी एल्स हैविंग अनदर क्वेश्चन प्लीज?
We are going to conclude For this session efficient for. Yeah, sir, I have a question. Can I put across? Okay, Archana madam, we will take up your question as the last question for today. Please go ahead. Okay. In our society, some of the members wants to use the common area, common space, and terrace, all these things, whichever is common, because we don't have that kind of common hall or gym or something. So they want to use the common space for their commercial purpose, like for dance and yoga classes, or for the society kids only. So is this permissible, or how to tackle with the police in case it is a police procedure? So how to tackle with this? Whether use of common area is allowed for such activities? जहाँ तक टेरेस का जो इट इज इफ इट इज सोसाइटी की कॉमन टेरेस है, तो वहाँ पे तो अभी इन बिटवीन काफी सारे इट हैज बीन मिसयूज बाय द सोसाइटी मेंबर्स. काफी सारे कंप्लेंट्स वगैरह आ चुके थे कि मतलब so many even obscene and criminal activities are going on. So that is why now even every society is also restricting the movement of the people. अगर हमें एक genuinely अगर कुछ चाहिए तो then you have to take the permission of the society, and security person will come and open the terrace and they will आपको पूछेंगे what is the purpose of. अगर आप कोई अच्छे पर्पस के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो आई थिंक सोसाइटी शुड allow if you don't have the common area to be used. So what about the common area, the lobby and everything, where we have the car parking, walking area, जहाँ से लोग आते जाते हैं, क्या वो यूज कर सकते हैं आप? तो दूसरों को दिक्कत हो जाएगी ना सर. एकदम अगर आपको सोसाइटी सिर्फ 50 या 100 मेंबर की सोसाइटी है, उसके अंदर कितना स्पेस होगा, तो आप मैंने उसमें पुलिस प्रोसीजर क्या होता है, तो कोई सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा सर? वहाँ कोई पुलिस प्रोसीजर नहीं. इट इज द इंटरनल जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, इट इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मेंबर्स एंड वो अंडरस्टैंडिंग होती है. वहाँ कोई पुलिस का कोई रोल नहीं है. पर पुलिस का सॉरी सर, पुलिस के जो इसमें आता है वो मैटर्स पर्टेनिंग टू अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कॉमन स्पेस, फ्लैट, पार्किंग एरिया. ये पहला प्रोविजन है बायलॉज के अंदर कि 3 प्रोविजंस दिए हुए हैं शायद, तो उसमें पहला प्रोविजन यही आता है कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ पार्किंग स्पेस, कॉमन स्पेस, फ्लैट्स, कोई भी चीज अनऑथराइज्ड यूज्ड. सो इजंट दैट अनऑथराइज्ड यूज सर? It doesn't come under the police purview. Excuse me, sorry to interrupt, sir. Shall I read the provision if in case you allow me of the bylaw? Archana madam, just hold on. We have understood your question. Yes. I have got Advocate Fatima also online. She would like to answer you. After that, I will also put in my view on that particular thing. Okay. Fatima madam. Yes, sir. Thank you. Well, Archana ma'am, you can, according to my view, of course, Hemant sir will give his comments. You can give a letter to the police. That is like a trespass. That is a common area which you are supposed to utilize as a member. And if there is any unauthorized, you can put a complaint as trespass of unwarranted people or unauthorized people entering the society and being permitted to do so by the committee members. Am I right, Hemant sir? Okay. But any member who is using the area of the same society, how it will amount to trespass? Not the same member. Very correct. Okay, Archana madam, for your information, under the DC rules, yoga, dancing classes, ये वो सब चीज करना permissible है within the society premises. It is also reflected under the BMC Act as well. So the component of unauthorized usage is no longer applicable over here. Now, what remains is the permission of the society. The permission of the society, because common area space owner is the society. Society is the custodian of that property. Society is the trustee of the property. So who decides what is to be done in the common area is only the society. Society meaning first managing committee, secondly a decision by the general body. So if the general body says this is a common area
we do not wish anything to be done over here, then that decision of the general body is final for all purposes. There is no argument to that. But if the general body says कि ये फला फला टाइम में ये आप एक्टिविटी कर लो, then you are permitted to use that thing tentatively, temporarily. Nothing permanent can be made in the common area. Common passages, etc. is all common area. If you are doing anything construction over there, 4 table रख रहे हो common areas में, then it is an offense under BMC Act as well as under the Fire Act also. Okay, Archana ma'am, your question has been answered. Thank you, sir. Sir, I have one question. Deepa Deepa ji, Ravtani. okay, we will take up, we have already exceeded the time for 9:30 today. Anyway, we will take up one last question of yours. Thank you, sir. Sir, since October 2018 हमारी सोसाइटी रजिस्ट्रार के अंडर है, अब तक इलेक्शन नहीं हुआ है, क्या हम इलेक्शन करा सकते हैं? मैडम, आपका क्वेश्चन आज के सब्जेक्ट टॉपिक पे नहीं है. Okay. So we will not be answering you this thing. We'll take your question or some other time, or you can also coordinate with other. You can coordinate with Advocate Fatima, who also deals in cooperative matters. Send me a message and I'll give you Fatima ma'am's number to you. Okay. Thank you, sir. Advocate Ramesh Babu, are you there online, please? Advocate Ramesh Babu. Yes, sir. I am very well there. ठीक है. I feel very nice when I see you, sir. Thank you, sir. Can you speak a few words? Yes, as we had many sessions earlier also, so there are a lot of problems there in the cooperative housing societies. Today also I had went to 3 societies for the meetings in the morning. Even one of the meeting, Mr. Sonone sir he was also with me. So I would like to mention कि there are so many things. Can you increase the आवाज जरा बहुत लो आ रही है सर. अभी आ रही है सर? अभी आ रही है? It's quite low, Ramesh ji. If you can do something about your audio. I can't do anything because one second, I'll just put because it's a new laptop, because old laptop was giving some little bit problem. Maybe उसको भी कोरोना हुआ है. नहीं, कोरोना नहीं हुआ है. आप लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर रहे हो, नए लैपटॉप्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह. Yes. Can you hear me, sir? नो सर, वेरी लाइट. कुछ वॉल्यूम का सेटिंग है सर आपके कंप्यूटर में? ऑडियो सेटिंग वगैरह? नो सर. I'm audible now? Okay, sir. Okay, go ahead. No problems. Okay, na? See, I want to share one experience. This regards to the police complaint. See, there is one society which I am doing a retainership also on that society. There one thing is happened ki like that somebody is enclosing their balconies from outside with the brick wall and all. So the office bearers, they have taken an objection not to construct and all, because as per the Mumbai Municipal Corporation Act and as per the MRTP Act and bylaws also, it is clearly mentioned in 46 ABC and in 168, bylaw number 168 also, it is referred that if anybody does any illegal construction to their flat, so they will be charged 5 times of the monthly outgoings from the date of that illegal constructions. See what happened, I just wanted to share one experience. The society office bearers have taken the objection against the illegal construction which is taken place by one of the flat holders. Now the thing is happened like that, now they have become, enemies, both of them, the society office bearers and the flat purchaser. Now, what flat purchasers does, the flat owner does, like the flat owner told her wife to lodge a complaint against the office bearers. Only one office bearers. The thing has happened to something like that. The office bearer's wife has complained about their family.
In that case, the police was unable to do anything but except by giving a CRPC one show cause notice is given to them under CRPC 149. It is, I think so. Sonali sir, right? Yeah, that's a preventive notice here. 149. That is only to prevent the cognizable cognizable offenses and to prevent the any crime. You know. That is the thing, but only thing is that I feel that society can, the police station can interfere only for the cognizable offenses if it's taken place in the society. Otherwise, I think for internal matter, for administration matters, that has to be referred to the deputy registrar or Yeah. cooperative courts. I feel that, and so many people here in this forum today having a lot of problems, but everybody has got the same problems. But you know, as Sonali sir told, when the word comes like a cooperative ना, तो cooperative means सहकार. सब लोग साथ में आके सब साथ में डिसीजन लेना चाहिए. पर कुछ होता नहीं है. कुछ सोसाइटी में जो ऑफिस बेरर्स becomes they are the owners of the buildings, but that should not be happened. But there are so many laws, MCS Act, bylaws, various guidelines are also given by the cooperative commissioners. On the basis of that, we can fight. You know, that is my opinion. But today's session is very wonderful, and I really thanks to Pradeep Sononi sir ji, because एक ही बार मैंने उनको बोला था, उन्होंने बोला ठीक है सर आपके लिए करूँगा. Then thank you very much Pradeep sir, Sononi sir. And बस at the outset I can just say कि काफी सारे सोसाइटीज में बहुत छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है ना, which can be resolved by the managing committee itself. अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, if there is a dispute between the two members or any society issues हो अगर होते हैं ना, तो first preference I think the first remedy should be exhausted कि to approach the committee members के पास जाने चाहिए. They try to resolve instead of going अभी सब. फिर बाद में अगर आपको है तो फिर आगे आप रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो. अगर रजिस्ट्रार के पास भी अगर आपको इफ और नॉट सर्टिफिकेट यू कैन, देयर इज कोऑपरेटिव कोर्ट भी है. एंड अगर कोई अपने लिमिट एक्सीड करता है एंड ही इंडल्जेस इनटू अ क्रिमिनल एक्टिविटी, देन यस ऑफ कोर्स द पुलिस पीपल आर ऑलवेज देयर. लेकिन हर छोटी मोटी बात पे पुलिस स्टेशन में अगर you know the police people are you'll not believe they are so tied up with the work. I'll tell you कि मतलब nobody will understand कि जब तक अभी हम डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं कि एक ऑफिसर ही is so overburdened with the work. I'm not taking their side, but क्या होता था कि पहले केसेस वगैरह पहले बहुत कम आते थे. अभी हर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा ये वो हर छोटी मोटी चीज के लिए आई थिंक पुलिस इज द ओनली एनफोर्समेंट एजेंसी. आप देखिए ना, बाकी के एनफोर्समेंट एजेंसी कोई है ही नहीं. इफ यू सी हर छोटी मोटी अगर देयर इज अ लिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ, कोई किसी का आदमी मिसिंग कंप्लेंट है, कोई आदमी घर से निकल गया तो भी पुलिस है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा तो भी पुलिस है, रास्ते में कुछ हो जाता है, गाड़ी की थोड़ी इधर उधर हो जाता है तो भी पुलिस है. आई नो आई विल टेल यू वन थिंग, आप एक बार कभी पुलिस स्टेशन में जाके बैठ के देखिए कि हाउ दिस पीपल दे आर, कितने टॉलरेंटली वो बैठ के 12 घंटे यू नो दे आर फेसिंग द पीपल. इट इज रियली वंडर. कभी मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड देम, बट सर्टेनली अगर मैंने हेमंत जी से और मैं इनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से इफ एनीबडी इज रेडी टू कम, आई कैन certainly coordinate with the जो हमारे joint commissioner law, he is a very sensible Mr. Vishwas Nangre Patil. I have worked under him. He is a very good, बहुत अच्छे उनके काफी सारे YouTube वीडियोज भी है. इज वेरी सेंसिबल, बहुत होशियार है. एंड इवन कमिश्नर साहब भी, मतलब आई हैड अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर दिस पीपल. So I can certainly take up this issue with the police so that at least police can attend common जो society के जो issues है, so at least he can give the directive to the each and every police station कि भाई तुम जितने possible है आप society वालों को जरा कर लीजिए. I would definitely like to grab this opportunity. Thank you, Yamanji and Ramesh Babuji for giving me an opportunity, and thanks everyone that for patient hearing.
Thanks to you too. Hemanji, You are on mute. you're on mute, Hemanji. Oh, sorry, sir. Advocate Pradeep Sunavne, we thank you on behalf of all the participants for all the information, knowledge you have shared with us. Typically, criminal laws हैं, इसके नॉलेज हर किसी एडवोकेट को इतना डेप्थ में नहीं होता है. आपको इतना डेप्थ में है बिकॉज यू वेर ए पार्ट ऑफ दैट पुलिस फोर्स वेयर वी ऑर्डिनरी मेंबर्स लुक अपॉन टू कि चलो पुलिस स्टेशन जाते हैं, शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. पर आपकी बात सही है, नॉट ओनली द पुलिस डिपार्टमेंट, हर सरकारी डिपार्टमेंट इज एक्चुअली ओवरवर्क्ड. आई हैव सीन मेनी डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट ओवरवर्क्ड है. कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी ओवरवर्क्ड है, नॉट दैट वे. हमारी पॉपुलेशन की संख्या इंक्रीज हो रही है सर, हमारे फ्लैट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिस्प्यूट्स भी इंक्रीज है. आपने कहा हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ भी तो इंक्रीज हो ही रहे, डिस्प्यूट तो जागेंगे. और क्या होता है कि हर किसी को शौक आता है डिस्प्यूट करने का. आजकल थोड़ी सी बात हो गई, थोड़ा सा ईगो आ गया, थोड़ा सा इम्पेशंस हो गया, चलो पुलिस स्टेशन, यू नो. सो जैसे मैंने शुरू में कहा कि वी शुड ट्राई टू प्रैक्टिस लेट गो एटीट्यूड, तो शायद हमारा कुछ बन जाए इसके अंदर. मुझे आई कैन एश्योर यू, अगर किसी का इफ एनी सोसाइटी मेंबर इज फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम या कोई ऐसा काफी सीरियस इशू है which is to be dealt by the police people, I am there to certainly help the people. I have no problem. I can certainly put the word to the concerned police station and I'll try my level best to get it resolved. Sir, can you also suggest to the relevant department in the police force to constitute what is called, एक जमाने में एक मोहल्ला कमेटी हुआ करती थी. तो ऐसे कोई सोसाइटी कमेटी या ग्रुप ऑफ सोसाइटी की कमेटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं. यहाँ पे हफ्ते में एक बार या 15 दिनों में एक बार एक पुलिस इंस्पेक्टर आ जाए, भले 2 स्टार पुलिस इंस्पेक्टर आ जाए, सिर्फ बैठे वहां पे 4-5 चीजें सुने और लगे हाथ लाइक सॉल्व करने की कोशिश करें. कैन इट दिस बी हेल्पफुल सर? Actually, Hemant ji, क्या है कि every police station is divided into 4 parts, that is called the beat, and every beat is headed by either by the assistant police inspector or the sub inspector 2 star. तो उनको एक ऐसे एरिया दिया होता है, he is the area इंचार्ज. और वो जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं, रिटर्न कंप्लेंट जो एप्लीकेशंस वगैरह पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो इट इज बीइंग एंडोर्स्ड टू दैट कंसर्न बीट ऑफिसर्स. और बीट ऑफिसर विल विजिट, अगर उसको लगा कि या तो विजिट करके करना है तो इधर दे विल विजिट, और या तो बीट की चौकी होती है, वो चौकी में बैठ के वो ही विल कॉल यू. आपके एप्लीकेशन पे अगर आजकल मोबाइल नंबर होता है तो ही विल कॉल यू एंड मेक द इंक्वायरी एंड देन ही विल गिव द हिज फाइनल फाइंडिंग कि उसका व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द योर एप्लीकेशन. तो वी कैन सर्टनली, अगर सुपीरियर ऑफिसर्स को हम कह सकते हैं कि जो बीट ऑफिसर्स है, या अगर सोसाइटी के मैटर्स अगर छोटे मोटे हैं तो इट कैन बी इजीली डील्ड बाय दिस बीट ऑफिसर्स. और people usually prefer not going to any type of police personnel's office. There is an inherent nervousness, apprehension, etc. So if it is, whenever you take up this suggestion with the relevant department, it should be that particular officer be deputed to come to the society, sit for half an hour, 1 hour. If it can solve many problems. अभी जैसे अगर कोई सोसाइटी में ये पता चलता है कि नहीं संडे को तो वो पुलिस वाला मेरे पास में आने वाला है, सोसाइटी में आने वाला है, तो मेरे समझ से खाली इतना ही एक सेंटेंस कि संडे को 10 बजे पुलिस वाला आएगा ये सारी सुनवाई करने के लिए, इतना ही एक सेंटेंस सोसाइटी के बाकी सारे मेंबर्स के जो डिस्प्यूट वाला मेंटालिटी है उसको शांत करने में काफी होगा. दैट इज माय थिंकिंग सर. इफ यू कैन हेल्प आउट the society people by coordinating with the relevant department for these purposes, it will be obliging to all the societies sir. बट हेमंत जी क्या है कि इवन बीट ऑफिसर के पास में भी
बीट ऑफिसर के पास में भी इतने सारे बड़े बड़े एरियाज होते हैं. आई टोल्ड यू कि एवरी पुलिस स्टेशन हैज अ वेरी बिग जुरिडिक्शन. अब कम से कम एक एक बीट में. Thank you all the participants. Thank you Advocate Ramesh Babu. Thank you Fatima Fozdar madam, and thank you Advocate Pradeep Sonawane for all the guidances that we have received. Thank you everybody, and we will conclude for today. Hemant sir, Good night thank you everybody. from the participants also. Thank you. Thank you, sir. Hemant Thank sir. you.